সেশন শুরু করার আগে রেকর্ড করে নিই। তো অসংখ্য ধন্যবাদ সকল কমিউনিটি তথা লিডার অ্যাচিভার্স এবং সমস্ত এমএসটি বেঙ্গল টিমের এবং এমএসটি ব্লক চেনের সকল পরিবার সকলকে আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে আমি আপনাদের কাছে মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন আজকের সামান্য কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমি কয়েকটি আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবো। তারপরে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অতিথি দ্বারা আজকের আমাদের এমএসটি ব্লক চেনের সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশন থাকবে, যেখানে আজকের এই আহ বিশেষ এমএসটি বেঙ্গল টিমের জুম মিটিং এ আপনারা যেভাবে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত করে আপনারা যুক্ত হয়েছেন, সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, এটাই আগামী দিনের জন্য আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা পরিচয় এবং একটা প্রমাণ, যা আমরা এমএসটি ব্লক চেনকে শুধু প্রজেক্ট নয় বা প্রযুক্তি নয়, আমরা এটাকে নিয়ে আগামী দিনে একটা মিশন ভিশন তার একটা অংশে যে আমরা জড়িত হয়েছি, এটা তার প্রমাণ দেয় যে আমরা প্রত্যেকে এই জুম সেশনে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। তো আমরা গর্বের সাথে কাজ করছি এমএসটি ব্লকচেনের সঙ্গে, যা ভারতের প্রথম লেয়ার ওয়ান ডিসেন্ট্রালাইজ একটা পাবলিক এবং লিগাল ব্লকচেন আমাদের নিজেদের অবস্থান শক্তভাবে প্রতিষ্ঠান করেছে। আমাদের মতো সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের এই এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ পার্টিসিপেন্টের জায়গা আমাদের কাছে তুলে দিয়েছেন। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড এবং আমাদের বেঙ্গল টিমের তথা সত্যকুমার হাজরাকে আমরা অসংখ্য অসংখ্য কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করি। তো এই জায়গা থেকে আমাদের যে মিশন ভিশন আজকের এমএসটি ব্লকচেন আমাদের কাছে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে, সেটা হচ্ছে একটা স্বচ্ছ এবং সুরক্ষিত ডিসেন্ট্রালাইজ ইকোসিস্টেম তৈরি করা, যেখানে সাধারণ মানুষ ব্লকচেন প্রযুক্তিকে একটা সুন্দরভাবে তার প্রকৃত শক্তিকে ব্যবহার করতে পারবে, শিখতে পারবে, শেখাতে পারবে। আর এখানে যে মিশন ভিশন সেটা হচ্ছে ভারতকে একটা গ্লোবাল ব্লকচেন ম্যাপে আগামী দিনে একটা শক্তিশালী অবস্থানে যাতে নিয়ে যেতে পারে বা আমরা প্রত্যেকে যাতে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য একটা স্বনির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতি ভিত্তি গড়ে তোলা। তাই আমরা শুধু নোট বা কোনো টোকেন বা কোনো কয়েনে আমরা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কাজ করছি না, আমরা ভবিষ্যতের একটা মানে মানে কি বলবো একটা প্রযুক্তিগত বিপ্লবের একটা অংশ আমরা সবাই গ্রহণ করেছি, আর এই অংশটাকে আমরা সবাই ডেভেলপমেন্ট করছি। তাই আজকের যে মেন আলোচনার বিষয়, সেই আজকের মেন আলোচনার বিষয়ে আমাদের কাছে 2026 সালের যে রোড ম্যাপ সম্পূর্ণ আমাদের মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রোড ম্যাপের মাধ্যমেই রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নতুন আপডেট এবং আগামী দিনের কমিউনিটির যে গ্রোথ মানে কি বলবো একটা সুন্দর একটা স্ট্র্যাটাজি আমাদের জন্য রাখতে চলেছেন। তা সেই জায়গা থেকে আজকের সেশন একদম অত্যন্ত শক্তিশালী আর একদম এক্সক্লুসিভ একটা আমাদের সেশন হতে চলেছে, কারণ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অভিজিৎ যাদব স্যার, অর্থাৎ মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির এইচওডি, অর্থাৎ অভিজিৎ যাদব স্যার। তো আমরা অভিজিৎ যাদব স্যারকে ওয়েলকাম জানাবো। খুব শীঘ্রই আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের এই জুম সেশনে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন মিস্টার অভিজিৎ যাদব স্যার। তো আমরা তাকে আমাদের সম্মান এবং সম্মানের অন্তঃস্থল থেকে আমরা অভিজিৎ যাদব স্যারকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। আর সেখান থেকে আজকের এই সভায় আমাদের সঙ্গে অভিজিৎ যাদব স্যার উপস্থিত হয়ে তিনি আমাদের জন্য, আমাদের মতো সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য তিনি তার মূল্যবান সময় দিয়ে এখানে তার বক্তব্য তিনি পেশ করবেন। আর সেখান থেকে সারা জীবন আমাদের এই এমএসটি ব্লকচেনের মিশন ভিশন থেকে তিনি অনেকগুলো মূল্যবান পয়েন্ট আমাদের জন্য তুলে ধরবেন। তাই আগামী দিনে এমএসটি ভিশন এবং মিশন যে সম্পূর্ণ একটা স্ট্র্যাটেজির একটা গ্রোথ নিয়ে কাজ করতে চলেছে, সেখান থেকে তার অভিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টি একটা নেতৃত্ব আমরা আশা করছি আমাদের অভিজিৎ যাদব স্যার আমাদের জন্য সেইভাবে পেশ করবেন। এবং তার কাছে আমাদের কাছে এতটুকুই অনুপ্রেরণা যে আমরা এমএসটি ব্লকচেনকে আগামী দিনে একটা পৃথিবীর মধ্যে টপ 10 ব্লকচেনের মধ্যে আমরা আগামী দিনে সকল সদস্য, কমিউনিটি মেম্বার, লিডার, অ্যাচিভার সকলে মিলে আমরা এই এমএসটি ব্লকচেনকে যেন টপ 10 ব্লকচেনের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি। তাই আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তো ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে অভিজিৎ যাদব স্যার উপস্থিত হয়েছেন। তো আমরা সকলে অভিজিৎ স্যারকে সম্বর্ধনা জানাবো। আপনারা যদি পারেন প্রত্যেকে রিয়াক্ট করুন, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আপনারা আহ, আহ, স্বাগত জানান আমাদের অভিজিৎ যাদব স্যারকে, কারণ অভিজিৎ যাদব স্যার তিনি আমাদের জন্য তার যথেষ্ট মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের এই বেঙ্গল টিম জুম সেশনে প্রেজেন্ট হয়েছেন। তো আমরা এর জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর সেই সঙ্গে আমি অভিজিৎ যাদব স্যারকে আমাদের মধ্যে আমি কো হোস্ট করার জন্য আমি চেষ্টা করছি। তো
তো চলুন আমরা আমাদের অভিজিৎ যাদব স্যারকে আমরা কো-হোস্ট করে নিয়েছি। তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকল সদস্য, প্রিয় লিডার, অ্যাচিভার সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে আমার মাইক স্পিচ আমি এখন তুলে দেবো আমাদের এইচওডি অর্থাৎ হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অভিজিৎ যাদব স্যার। थैंक यू তো सो मच। থ্যাংক ইউ সো थैंक মাচ, यू सो मच। ওয়েলকাম, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप फीड सभी को, हाँ हाँ, क्योंकि आज का बिल्कुल एक बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सेशन हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। हम सभी एक दूसरे के साथ में रूबरू होने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने यदि पॉसिबिलिटीज़ रहेगी तो वीडियोस को ऑन ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो सर, आप सबको वीडियोस ऑन करने का ऑप्शन ज़रूर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ। तो मैं सारी participant को, अ, आपका आवाज आवाज कट रहा है सर। आप सभी को हाँ, वीडियो ऑन करने का ऑप्शन है। এটাও চালিয়ে দেয় না তবে তো জোর হবে আবার হ্যাঁ কোন লাগায় কোন ভিডিও প্রত্যেকের ভিডিও थोड़ा सा सर आपका, जोएल सर आपका थोड़ा सा आवाज कट रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको वहां पे नेटवर्क का कोई इशू रहेगा। ओके दोस्तों नमस्ते। बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस को ऑन किया है। यहाँ पे जोएल जी है, शेख रिजाबुल अली जी है, तरुण नस्कर जी है, जीतू मांझी जी है, सत्य कुमार हजरा जी है, सुजान नस्कर जी है, अमर दास जी है, गोपाल बेरा जी है, नमस्ते, ইনস্টল হয়ে গেলে सूरज जी, सोपान मंडल जी, तरकनाथ मंडल जी नमस्ते, गौतम जी भी है। दोस्तों आज के ये सेशन मैं चाहूँगा कि मैं जो भी बातें करूँ, जो भी डिस्कशंस करूँ, इसको थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जोएल जी है, और यहाँ पे जिटुमान जी भी बिल्कुल है। वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। पहली बात कि हम लोगों ने जिस तरीके से एमएसटी को स्टार्ट किया है और जिस तरीके से एमएसटी आगे बढ़ रहा है, आप सभी के पास में उसके अपडेट्स आते रहेंगे। और भी कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों पहली ये चीज़ है कि एमएसटी बहुत ही तेजी से अपनी इकोसिस्टम्स को, अपने प्लेटफॉर्म्स को, अपने टेक को आगे बढ़ा रहा है। जोएल जी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप डिस्कशंस के लिए। जो भी मैं चीज़ें कह रहा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, सा आप हाँ कन्वर्ट करके जरूर बताइए। सर हाँ सर मैं रेजाउल अली एक बात बोलूं जी सर। जी जी जी। सर यहाँ पर जो बंदा है, जितना आदमी है, सब हिंदी समझता है सर। अरे वाह बढ़िया। कोई भी अगर कोई भी बंदा हिंदी नहीं समझता है तो हैंड हैंड राइज कीजिए। हम नहीं, हाँ, नहीं, जिनको हिंदी हिंदी क्लियर नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा हैंड राइज करिए। हम जिनको बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर भी देंगे, हिंदी कोई दिक्कत नहीं। समझता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको हिंदी नहीं समझता है वो प्लीज एक बार हैंड राइज करिए, ताकि हम हाँ लोग उनके उनके लिए थोड़ा सा कन्वर्जन की बातें करें। यानी इसका मतलब है आप सभी लोग हिंदी समझ रहे हैं। अभी हिंदी जितने समझ रहे क्लियर हैं बोल वो नहीं हैंड पाएगा राइज लेकिन करें। समझ पाएगा सब। हाँ नहीं नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई सर। बात नहीं। हिंदी में जो बोल रहा जो लैंग्वेज बिल्कुल है, सर, वो जो समझ रहे हैं, वो सब लोग हैंड राइज करिएगा प्लीज। और मैं चाहूंगा जोएल जी और सभी को हम हाँ लोग हाँ म्यूट करते हैं, ताकि वो लोग अपने हैंड राइज कर सके। जिनको जिनको हिंदी आता है आप सभी लोग हैंड राइज करिए, ताकि मैं भी जान बिल्कुल सकूं सर। कि इस मीटिंग में बैठे हुए सब लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है क्या। और सर हमारा अंदर अभी प्रेजेंट हुआ है हमारा पुनीत शर्मा जी, यहाँ पर नेशनल हेड, उन्होंने भी यहाँ पर अटेंड किया है। तो जी जी उनके जी लिए भी हम वेलकम करता हूँ, थैंक यू जानता हूँ। जी जी जी। ओके तो थैंक यू सो ग्रेट मच पुनीत सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके क्या आप सभी ओके ने आपके हैंड राइज किए, ओके, यानी आप थैंक यू सभी सो लोग मच। हिंदी समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों सेशन को आगे बिल्कुल बढ़ाते हैं। एमएसटी बिल्कुल जिस तरीके से अपने टेक को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ा रहा है, दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हम लोग देखते रहेंगे
कि एमएसटी का टेक बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इस टेक के वजह से ही मैं आपको कुछ चीजें जो शेयर करना चाह रहा हूं जो आप सभी के लिए जरूरी है। हाँ एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि अ, मेरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों को शेयर हो रही है क्या? एक सेकेंड जस्ट। अभी तक नहीं नहीं, हुआ जस्ट है। जस्ट 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 सेकेंड, जस्ट सेकेंड, एक्चुअली वो हम्म। कुछ नो प्रॉब्लम सर। ओपन। ओके, अभी हो रहा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके। ओके, चलो फिर से शेयर करता हूं मैं। बिल्कुल। ओके, अभी शेयर हो रहा है? हाँ हुआ है। ओके, हाँ बिल्कुल सर। डन। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि एमएसटी अपने पेज को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहा है। करीबन 16 से 17 लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में एमएसटी ने अपने खुद को प्रेजेंट किया है, जिसमें हो सकता है बंगाली लैंग्वेज भी ऐड है, आई थिंक। सबसे लास्ट में वही दिख रही है मुझे। क्या जोयल जी, बंगाली ही लैंग्वेज है सबसे लास्ट में? जी सर। ओके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला है बांग्लादेश, बंगाल। हाँ। बंगाली लैंग्वेज है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएसटी अपनी पूरी इकोसिस्टम्स को, अपनी सारी चीजों को आपके साथ में साझा करने के लिए हर एक लैंग्वेज में अपने पूरे टेक को, अपने ब्लॉकचेन के पूरे नॉलेज को आप लोगों के साथ में साझा कर रही है। तो आप इसको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप इसको पढ़ सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको जरूर पढ़ते रहिएगा। साथ ही बिल्ड का जो ऑप्शन है, वहां पे जो डेवलपर्स का टास्क है, जो आपके पास में कोई लोग रहेंगे जो को अपने खुद के कुछ प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय करना चाह रहे रहेंगे, खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करना चाह रहे रहेंगे, खुद के इकोसिस्टम्स डिप्लॉय करना चाह रहे रहेंगे, तो वो ओपन सोर्स है। एमएसटी एक ब्लॉकचेन लेयर 1 है, और लेयर 1 में ओपन सोर्स है। कोई भी बंदा यहाँ पे आके अपने प्लेटफॉर्म्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, कॉइन्स को, टोकन्स को, अपने प्रोग्राम्स को डिजाइन कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इसमें और कुछ चीजें मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा कि आज की डेट में हम लोग देखेंगे तो अराउंड 3,18,575 फ्रैक्शंस अभी तक सेल हो चुके हैं, और करीबन 68,050 यूजर्स हमारे साथ में कनेक्टेड हो चुके हैं, और ये एक साल के अंदर हो चुका है। और हम लोग बातें करें तो दोस्तों, अराउंड 1,59,734 एड्रेसेस हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। तो इतना सब एमएसटी ने पिछले एक साल में किया है, और इसी के बदौलत एमएसटी अपना खुद का टेस्टनेट और मेननेट दोनों चीजें जो लाइव कर चुका है, अपने आज की डेट में 9 नोड लाइव कर चुका है, जिसके वजह से 859 कॉन्ट्रैक्ट्स आज की डेट में टेस्ट हो रहे हैं, और उसमें से 81 कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाइड है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट किसके है? तो ये अपना लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये ओपन सोर्स है। यहां पे कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टोकन्स बना सकता है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली हो रही है, उसके ट्रांजेक्शन्स भी बन रहे हैं, बराबर है। तो ये सारी चीजें हो रही है। अभी बात देखने की ये है कि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा प्लानिंग क्या है, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी कम्युनिटी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद हर एक जगह पे ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहा, हर एक सिटी में, हर एक मेगा सिटीज में मैं ब्लॉकचेन अवेयरनेस कर रहा। और अगले इस मंथ में करीबन मिनिमम 10 अवेयरनेस प्रोग्राम में ऑल ओवर इंडिया में करने वाला हूँ, जिसमें से मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी शेख रिजाबुल अली जी, तरुण नस्कर जी, सत्य कुमार हजरा जी, आप सभी के साथ में डिस्कशन हुई है। हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में चाह रहे हैं कि कलकत्ता में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जो कंपनी रिप्रेजेंट करे, जहां पे बाकायदा कंपनी के मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में से मान के चलो मैं हूं, और कोई लोग जैसे सीएमओ है, वहां पे अपने पूरी टेक को आप सभी के साथ में कनेक्ट कर पाए, आपको प्रेजेंट कर पाए। उसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि आपको इस ब्लॉकचेन की हर एक डिटेलिंग पता चलेगी, और हर एक डिटेलिंग यदि आपके पास में पहुंचेगी
तो आप समझ सकते हो कि आप यहां पे किस लेवल तक आगे बढ़ोगे और कैसे आप आगे बढ़ोगे, क्या क्या नॉलेज आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तो है नहीं। और यहां पे हम लोग नोड वैलिडेटर बन के काम कर रहे हैं, एक परिवार बन के काम कर रहे हैं जो अगले 19 साल तक साथ में रहेगा। यहां पे आपके एमएसटीसी यूटिलाइजेशन के लिए ढेर सारे प्रोग्राम इस ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव हो सकते हैं, बट एमएसटी खुद इकोसिस्टम है, एमएसटी लेयर 1 है। एमएसटी है तो सब कुछ संभव है। तो आप लोगों के पास में अभी मौका है कि आप मैक्सिमम लोगों को इस ब्लॉकचेन के साथ में वैलिडेटर बना सकते हो, और आप बना भी रहे हो। देखिए, एक चीज मेन इंपॉर्टेंट यह है कि हमें इसके पहले किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का मौका नहीं मिला है, हम लोग किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर नहीं बन पाए। हम लोगों ने अभी तक एमएलएम, इन्वेस्टमेंट, पॉन्जी स्कीम्स, आरओआई वाले ही प्लान किए। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग उसमें ना पड़े। हम लोग चाहेंगे तो अपने खुद की आमदनी, हमारी खुद की इस लेवल पे डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हम लोग हमारे लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं। और उसके लिए एक में एक रास्ता है, एमएसटी और एमएसटी के नोड वैलिडेटर। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप यहां पे नोड वैलिडेटर जब बनते हो तब आपको जीएसटी इनवॉइस आ रहा है जो अगले 19 साल तक आपको आपके नेटिव कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड में देने का वादा कर रहा है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, उसके लिए कोई पैसा आप पे नहीं कर रहे हो। आप जब आपके फ्रैक्शंस बाय करते हो तो आपको जीएसटी इनवॉइस आपको अगले 19 साल तक इस ब्लॉकचेन की सॉरी इस ब्लॉकचेन की सर्विसेज देने का वादा करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म्स, इकोसिस्टम जो एमएसटी के हैं, खुद एमएसटी अपने इकोसिस्टम्स को डेवलप कर रहा है, जिसमें से एमएसटी ने उसका मिननेट टेस्टनेट लाइव किया, बाकायदा उसका अनाउंसमेंट प्रमोद जी ने किया। उसके बाद में अपना डाउ लाइव हुआ, उसका भी अनाउंसमेंट प्रमोद जी ने किया। उसके बाद में अपना वॉलेट लाइव हुआ, उसका भी अनाउंसमेंट प्रमोद जी ने किया। और अपना स्टेबल कॉइन भी लाइव हुआ, जिसका अनाउंसमेंट बाकायदा प्रमोद जी ने किया। तो यहां पे जो जो चीजें एमएसटी की तरफ से लाइव हो रही है, उसका बाकायदा अनाउंसमेंट प्रमोद जी कर रहे हैं ऑफिशियली, हेड मेन फाउंडर बन के। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी खुद की इकोसिस्टम बनती है जो एमएसटी बनाता है, तो उसका अनाउंसमेंट खुद फाउंडर्स मैनेजमेंट करेंगे, और वही इकोसिस्टम ग्रांटेड रहेंगे एमएसटी के, क्योंकि एमएसटी लेयर 1 है। और लेयर 1 के ऊपर कोई भी ओपन सोर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स, टोकन्स, कॉइन्स, स्टेकिंग प्रोग्राम्स, लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म्स बना सकता है। बट वो बनने के बाद में, वो डिप्लॉय होने के बाद में, उसकी प्रोग्रामिंग, उसका टेक, उसकी सारी चीजें हमें खुद चेक करनी पड़ेगी एज अ यूजर, यदि आप उसको यूज करना चाह रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले उसका आप वहां पे कुछ फंड रेज कर रहे हो, वहां पे कुछ फंड लगा रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और उस प्लेटफॉर्म की रहेगी। उसका रीजन ये है दोस्तों कि एमएसटी अपने लेयर 1 ब्लॉकचेन को आगे बढ़ा रहा है, और लेयर 1 ब्लॉकचेन को जब आगे बढ़ा रहा है तो अपने टेक को भी आगे बढ़ा रहा है। एमएसटी बाकायदा अपनी इकोसिस्टम्स में कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्रोग्राम्स लाइव करेगा, बट उसकी ऑफिशियल अपडेट आपको एमएसटी ब्लॉकचेन पेज से ही मिलेगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, जितनी भी स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स बनती है, जितने भी प्रोजेक्ट अपने डेवलप होते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स अपने डेवलप होते हैं, या जो भी इकोसिस्टम अपने डेवलप होते हैं, एमएसटी खुद उसको अपने सोशल हैंडल पे प्रमोट करता है, जो ऑफिशियल होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया के चैनल्स के साथ में भी कनेक्टेड करें। दोस्तों देखिए, एमएसटी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, और उसका रास्ता एक ही है, नोड वैलिडेटर। और नोड वैलिडेटर आज की डेट में 9th नोड एक्टिवेट है। हमारे पास में ओनली 12 नोड बचे हैं, 12 नोड बचे हुए हैं। 12 नोड में हमारे पास में फ्रैक्शन बचे कितने हैं? 8,40,000। यानी हर एक बंदा बस 12 फ्रैक्शंस को भी बाय करता है तो पूरे नोड से लो हो जाएंगे, और आपकी ही फ्रैक्शन की प्राइस, आपकी ही प्रोडक्ट की प्राइस 20,000 पे चली जाएगी।
विद जीएसटी। और पिछले साल में जिन लोगों ने उनके फ्रैक्शंस लिए हैं, उनके नोट्स लिए हैं, उन्होंने उनके कॉइन्स को रिवॉर्ड में लिया है, वो कॉइन्स आज की डेट में मार्केट में पब्लिक डिमांड कर रही है 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक, 50 पैसे से भी कोई खरीद रहा है। यदि कोई बंदा खुद चाहता है कि उस कॉइन्स को सेल करना, तो वो सेल कर सकता है और सेल करके अपनी लिक्विडिटी को निकाल सकता है। और वो पब्लिक बाय कर रही है, कंपनी खुद नहीं बाय कर रही है। तो एमएसटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, एमएसटी टेक की डिमांड बढ़ती जा रही है, एमएसटी हर एक जगह पे यूटिलाइज होता जा रहा है। आप स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप्स में देखो, हाइपर सुई जैसा प्रोजेक्ट अपने टेक को यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका एक रीजन है। एमएसटी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, पहली चीज। दूसरी चीज, एमएसटी दुनिया की सबसे कम गैस फीस वाली, सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस लेने वाली ब्लॉकचेन है। और एमएसटी का टेक जो है वो सबसे एडवांस है, क्योंकि हम लोग वैलिडेटर ड्रिवन सिस्टम में काम कर रहे हैं। और आज जैसे प्रमोद जी ने कुछ अनाउंसमेंट किए, जिसमें हम लोग क्वांटम लेयर वन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग हाइब्रिड लेयर वन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सीबीडीसी जो गवर्नमेंट का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया में क्रिप्टोग्राफी के लिए, उसके साथ में हम लोग पेयरिंग करके उसकी लिक्विडिटी का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब होती जाएगी, तो एमएसटी दुनिया के हर एक कोने में हर एक डेवलपर यूटिलाइज करेगा। और उसका बेनिफिट किसको होगा? जो एमएसटी के नोड वैलिडेटर है, जिन्होंने एमएसटी के कॉइन्स रिवॉर्ड में लिए हैं। तो आप समझ सकते हो एमएसटी कहां तक जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में एमएसटी के लेयर वन ब्लॉकचेन के थ्रू एमएसटी हर एक जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ कॉलेजेस में ऑडिटोरियम्स कर रही है, कॉलेजेस में बाकायदा बच्चों को अवेयरनेस दे रही है, अपना टेस्टनेट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने दे रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग स्टार्टअप के साथ में रजिस्टर है, हमारा विजन क्लियर है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिनटेक के हर एक जगह पे जो सेमिनार्स हो रहे हैं, वहां पे एमएसटी पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप जब देखोगे, सोचोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि एमएसटी वैलिडेटर का भविष्य कितना बड़ा है। यहां पे एमएसटी कहीं पे भी ये नहीं बोल रही कि आप 1 लाख रुपए मुझे दो और 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। एमएसटी ने आपको हर टाइम यही बोला है कि आप इस ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनो, आप आगे बढ़ो, आप इस ब्लॉकचेन को वैलिडेट करो और इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन्स को एज ए रिवॉर्ड में लो। जो नेटिव कॉइन्स 1 पैसे में भी बिक सकता है और 1 लाख डॉलर में बिकता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो ये फ्यूचर है। और जो चीजें आपने आज तक की है, वही चीजों को आगे बढ़ाना है, बस नॉलेज को आगे बढ़ाना है और नॉलेज को सीखना है, समझना है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक बंदे के साथ में मैं कनेक्ट करना आज की इस मीटिंग में। यदि किसी का कुछ सवाल है, किसी को कुछ जानना है, किसी को कुछ समझना है, तो जरूर हैंड राइज करते जाइएगा। मैं आप सभी को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और बोलने का मौका दूंगा। बस बात इतनी सी है कि आपको आपके रियल नेम से आना पड़ेगा। और रियल नेम से आके आप यदि हैंड राइज करेंगे, तो मैं वादे के साथ में आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके नॉलेज में जो चीजें आपको देनी है, मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ में दूंगा। और मैं चाहूंगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप सभी लोग मिलके, क्योंकि यहां पे अराउंड 55 लीडर्स है, ये लीडर्स है दोस्तों, इन सबके पास में अपनी अपनी कम्युनिटी है। दुनिया भर के प्रोजेक्ट हम लोग करते रहे, हम लोगों ने अभी तक किए, अपनी कम्युनिटी को बनाया और फिर बिगाड़ा भी। डे बाय डे ऐसे प्रोग्राम आते जाएंगे, ऐसी चीजें होती जाएंगी, लेकिन एमएसटी अगले 19 साल तक आपके सभी के साथ में रहेगा। और एमएसटी ही है जो आपको इस लाइफ में
फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप यहां पे जो कम्युनिटी बना रहे हो ना, वो डे बाय डे कंटिन्यू हर एक प्रोग्राम के लिए यूटिलाइज होगी, जो ऑफिशियल प्रोग्राम है एमएसटी का। जैसे कि 21 नोड सेलिंग के बाद में एमएसटी खुद अपनी इकोसिस्टम में अर्थ कार्बन का कार्बन क्रेडिट का प्रोजेक्ट लाने जा रही है, जो ऑफिशियल रहेगा, जिसके अनाउंसमेंट बाकायदा प्रमोद जी करेंगे। और एमएसटी मैनेजमेंट हर एक प्रोग्राम में, हर एक इवेंट में, हर एक फिनटेक समिट में, या हर एक लाइव जोन सेशन में अपने खुद के ओन इकोसिस्टम्स का प्रमोशन करती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एमएसटी के सोशल मीडिया चैनल्स के साथ में कनेक्ट करें, एमएसटी के ऑफिशियल चैनल्स के साथ में कनेक्ट करें। वहां से आपको ऑफिशियल जानकारी मिल सकती है। कुछ लोग आपको गलत तरीके से गलत चीजें बता के गुमराह कर सकते हैं, लेकिन एमएसटी कहीं पे भी किसी भी बंदे के साथ में गलत कभी नहीं करेगा, क्योंकि एमएसटी एक परिवार बन के आपको अगले 19 साल तक इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का एज ए रिवॉर्ड में देने का वादा कर रही है। उसी के साथ साथ इस ब्लॉकचेन की सर्विसेज अगले 19 साल तक देने का वादा कर रही है। और कोई लेयर वन लाइव है, तो आप भी समझ सकते हो आज की डेट में जो बीएनबी का वैल्यू हो चुका है, आज की डेट में जो इथर का वैल्यू हो चुका है, आज की डेट में जो ट्रोन, पॉलीगॉन, पोल्काडॉट का वैल्यू हो चुका है, वही वैल्यू आपको एमएसटी देगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। तो नोड वैलिडेटर आप बनिए, और नोड वैलिडेटर आप बन चुके हैं, आप लीडर हो, आप अपनी पूरी कम्युनिटी को नोड वैलिडेटर प्रोग्राम के ऊपर मूव कीजिए। क्योंकि यहां से जो आप फंड्स रेज कर रहे हो, जो कमीशन आप रेज कर रहे हो, उस कमीशंस का आपको टीडीएस कंप्लायंसेस के साथ में लीगल वाइड पेमेंट मिल रहा है। आप यदि अपने लोगों का यहां पे फंड इन्वेस्ट करा रहे हो, उनको फ्रैक्शंस बाइंग करा रहे हो, तो उनको भी जीएसटी इनवॉइस मिल रहा है। यानी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई आपके घर के बाजू का रहेगा, कोई आपके घर वाला रहेगा, तो आपको कभी पूछने नहीं आएगा कि भैया मैंने एमएसटी में पैसा लगाया और उसका मुझे आज क्यों नहीं रिवॉर्ड आ रहा है। क्योंकि एमएसटी अगले 19 साल तक अपने नोड वैलिडेटर को एज अ कॉइन रिवॉर्ड में दे रही है, जिस कॉइन की वैल्यू 1 पैसे से लेके 1 लाख डॉलर तक भी हो सकती है। क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन की वैल्यू हम लोगों ने वो होती देखी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग नॉलेज लें। आज मैं आप सभी के साथ में कनेक्टेड हुआ हूं क्योंकि आप सब लीडर्स हैं, और मैं लीडर्स के साथ में पर्सनली रूबरू होके कुछ बातें करना चाह रहा था। और हमारा जो 3 लाख रुपए का बिजनेस का जो टारगेट दिया गया था, वो टारगेट का मीटिंग इसी मंथ के एंड में हो रहा है, जिसका आपको बाकायदा अगले 2 दिन के अंदर मेल आएगा। जो एचओर बन चुके हैं वो वहां पे उस मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से एमएसटी का टेक आपको प्रेजेंट किया जाएगा। वहां पे आपके पास में मौका भी है, आप एमएसटी के हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हो, जहां पे बाकायदा फाउंडर्स, मैं खुद, हमारे सीएमओ, सब लोग हम आपके साथ में रूबरू होंगे। और मिशन, विजन एक ही है दोस्तों, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, और अगले 19 साल तक एमएसटी को लाइव रखना और अपने नोड वैलिडेटर्स को इसकी सर्विसेज देना। तो मैं चाहूंगा जोएल जी, वन बाय वन यदि किसी को कुछ बात करनी रहेगी, क्योंकि मेरी जो बातें हैं मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, क्योंकि आप सब लोग थैंक यू सो मच सर। जी। तो मैं चाहूंगा कि किसी तो को बात करना रहेगा तो आप उनको अनम्यूट का मौका दीजिए, मैं उनके साथ में कनेक्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर हैंड राइज किया है। तो गोपाल चक्रवर्ती, माइती, डॉक्टर माइती, शेख राजीवुल, सभी ने यहाँ पर हैंड राइज किया हुआ है। तो सभी से एक एक करके ले रहा हूँ। तो यहाँ पर गोपाल चक्रवर्ती को लीजिए पहले। जी, गोपाल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जोएल जी उनको अनम्यूट का मौका दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनका तरफ अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है। हेलो सर। सर नमस्ते। नमस्ते। गोपाल जी कैसे हैं आप? थोड़ा सा आप यदि वीडियो ऑन करेंगे तो भी मैं आपको रूबरू जान पाऊंगा,
क्योंकि मैं जब कोलकाता में आऊंगा तब आपके सामने जब रूबरू होऊंगा तो मैं आपको जान पाऊंगा। জানালে আমি ভিডিও অন করতে পারছি না। उनको वीडियो ऑन का भी वीडियो ऑप्शन दीजिएगा। ओके, हाँ, आस्क वीडियो आपको दिया है मैंने। सर नमस्ते। देखिए। নমস্তে। हाँ, बताइए सर। আমি হিন্দি ভালো বুঝি না, বাংলায় বলবো যদি জয়নাল একটুখানি কনভার্ট করে দিয়ে দেয় প্রশ্নগুলো। डेफिनेटली डेफिनेटली अवश्य वो अवश्य, कन्वर्ट करेंगे। आप बताइए আমার उनको। প্রথম बिल्कुल। প্রশ্ন হলো যে অনলাইন যে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা হচ্ছিল সেটা তো বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে আগামী দিনে যারা অনলাইনটা ব্যবহার করতে ঠিকঠাক পারে না তারা কিভাবে এই নিজের প্রশ্ন উত্তরগুলো সে জানতে পারবে বা বুঝতে পারবে? हाँ, उनका पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑनलाइन का जो सर्विसेज यहाँ पर पहले दिया गया था, जो वहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का मिल रहा था, वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन कैसे वो ऑनलाइन उसका प्रॉब्लम ऑनलाइन का जूम सॉल्व करें। सेशन को हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग में ले रहे थे, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया आज की डेट में। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एमएसटी का जो एमएसटी बड़ी है, जो अपना एआई बोर्ड सिस्टम है, उसके ऊपर जाए और आप सारी चीजों को वहां से जान सके। क्योंकि देखिए, हम लोग एज अ ह्यूमन है, आपके साथ में आज लाइव आ पाएंगे, कल बिजी शेड्यूल रहेगा, कंटिन्यू हम लोग डेवलपमेंट्स में रहेंगे, कंटिन्यू कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, तो हम लोग आपके साथ में हर कोई बंदा कनेक्ट नहीं कर पाएगा मैनेजमेंट से। तो अपना टेक उस लेवल पे हम लोगों ने डेवलप किया है कि आप एमएसटी बड़ी के साथ में कनेक्ट करें और वहां पे अपना कुछ भी क्वेश्चन रहे वहां पे पूछिए, वहां पे आपको आपकी लैंग्वेज में वो रिप्लाई देगा। তো গোপাল দা, আপনি আমাদের এমএসটি বডি, যেটা হচ্ছে আমাদের এমএসটি body.mstblockchain.com, ওটা हाँ, ওখানে কোশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য অফিসিয়ালি ভাবে দেওয়া হয়েছে। আপনারা চাইলে এমএসটি বডিতে আপনারা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে হ্যাঁ, পারেন, যে কিন্তু কোনো ভাষা, আপনার যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে না না, কোশ্চেন করতে পারেন। কিন্তু ওখানে এমএসটি বাড়ির যদি কয়েন প্রাইসটা আমরা জানতে চাই তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে হুম, ফ্র্যাকশনের প্রাইসটা দেখাচ্ছে, राइट। তাহলে ও क्योंकि তো ঠিক क्यों দিচ্ছে না। রাইট। क्योंकि क्योंकि उसका रीजन ये है सर कि एमएसटी अभी तक कहीं पे लाइव ही नहीं हुआ। जब तक वो लाइव नहीं होगा तब तक आपको वो कॉइन का प्राइस कैसे बताएगा? आपको फ्रैक्शन का ही प्राइस बताएगा। ওকে। हाँ, उन्होंने अभिजीत सर, उन्होंने बोला है कि एमएसटी बॉडी के अंदर हम लोग एमएसटी कॉइन का प्राइस क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर फ्रैक्शन का प्राइस दिखा रहा है। मैं वही 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 कह रहा हूं, उनको जरूर आप कहिएगा कि एमएसटी हाँ, बड़ी आपको एक्चुअली फ्रैक्शन का प्राइस क्यों दे रहा है। क्योंकि हम लोग अभी फ्रैक्शन सेलिंग को ही आगे बढ़ा रहे हैं ना। अभी कहीं बिल्कुल। पे भी एमएसटी का कॉइन जो है वो लिस्ट नहीं हुआ है, और जब तक वो लिस्ट नहीं होगा तब तक वो एमएसटी का प्राइस कैसे बताएगा? बिल्कुल। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আমাদের এমএসটি যেহেতু এখনো কয়েন কোনো জায়গায় লিস্টিং হয়নি, তাই এই কারণে এখন যেহেতু নোট ফ্রাকশন চলছে, তাই নোট ফ্রাকশন অনুযায়ী তার যে প্রাইস সেটা এখন আমাদের লাইভ দেখাচ্ছে। তো এটা যখন আমাদের এমএসটি কয়েন যখন আগামী দিনে এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মে লাইভ হবে, তখনই আমাদের এমএসটি বডি বা অন্যান্য যে কোনো এআই টেকনোলজি, তখন আমাদের এমএসটি প্রাইসটা আমরা আপনারা কোশ্চেন করলে আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, হুম, বলুন। আগে পিডিএফে হুম, সমস্ত রকমের নথিপত্রের সাথে প্রমোদ বরাটে, মহেন্দ্র ধামসে, ঈশিতা শর্মা, রাজ কাপুর, কমলেশ নাগার, অনিল মুন্ডে, সমস্ত হুম, হুম। ডিপার্টমেন্টের লোকদের, এসটিপিআই এর লোকদেরও এখানে ছবি দেখানো হতো, এখন সেটা দেখা যায় না হ্যাঁ, কেন? এর কারণ কি? ফার্স্ট হোয়াইট পেপারে যেটা আমাদের প্রমোদ বড়াটের ছবি দেখা যেত। তো আর 201 यहाँ पर যেটা দেখা যেত, 201 20 ভার্সন 201 201। যেটা দেখা যেত, 5.0 কেন দেখা যাচ্ছে না? ओके ओके। तो अभिजीत सर, यहाँ पर इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनका, उन्होंने बोला है कि ये जो हमारा कंपनी का जो टू टू जीरो 2.0.1 जो व्हाइट पेपर है, उनका अंदर जो हमारा पीडीएफ फाइल है, उनका अंदर जो हमारा कंपनी का जितने सारा मेंबर है मैनेजमेंट टीम के, हाँ उनका हाँ, तो फोटो वगैरह वहाँ पर लिखा हुआ होता है, लेकिन अभी का टाइम पे किसी भी पीडीएफ के अंदर हम उन लोगों का अभी तस्वीर में नहीं दिख रहा हूँ। देखिए, तो ऐसा क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी हम्म, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनी कहीं पे भी अपने फाउंडर्स को, अपने टीम ऑफ एक्सपर्टीज को प्रमोट नहीं करते। और दूसरी बात, अपना व्हाइट पेपर जो है वो गिटहब के ऊपर रजिस्टर है।
जहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहता आप किसी फाउंडर को प्रमोट करो, वहां पे बाकायदा टेक को प्रमोट किया जाता है और इस ब्लॉकचेन की जो आगे की प्लानिंग्स है उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे बिल्कुल आप इथेरियम का व्हाइट पेपर देखो, आप बीएनबी का व्हाइट पेपर देखो, आप ट्रोन का व्हाइट पेपर देखो। पहले बिल्कुल फर्स्ट जो व्हाइट पेपर में ये डाली थी चीजें, वो उसलिए डाली थी क्योंकि कम्युनिटी को पता चले कि ये लोग कौन है जो इस ब्लॉकचेन को बना चुके हैं। बट आज ब्लॉकचेन 1 साल से रन हो रहा है, अपने नोड्स रन हो रहे हैं, अपना मिननेट टेस्टनेट रन हो रहा है, और हमारे फाउंडर्स, हमारी टीम ऑफ एक्सपर्टीज, हम सब खुद हर एक फिनटेक में, हर एक एक्सपो में, हर एक जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी इसको व्हाइट पेपर में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन है, वो व्हाइट पेपर नहीं है। जो आपके पास में है बिल्कुल वो पीडीएफ है प्रेजेंटेशन की। व्हाइट पेपर अपना बिल्कुल बाकायदा गिटहब के ऊपर रजिस्टर है। तो इसकी वजह से वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशंस में अपने फाउंडर्स का फोटो नहीं है। बट বিলকুল। তো लाइव। আমাদের আমাদের গোপাল দা, আমাদের যে বিষয়টা আমাদের অভিজিৎ স্যার এই মাত্র বললেন, যেটা হচ্ছে হুম আমাদের কোম্পানির হোয়াইট পেপার শুধুমাত্র গেটহাবের মধ্যে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আর গেটহাবের মধ্যে কখনো কোম্পানির প্রোফাইল বগেরা কিছু চেক করা যায় না। সেখানে কোম্পানির টেকনোলজি বিষয়ে সেখানে আপগ্রেডেশন গুলো দেখানো হয়। আর এখানে আমাদের যে ছবিগুলো আমরা দেখেছি কোম্পানির প্রোফাইল থেকে, সেটা শুধুমাত্র আমাদের কোম্পানির প্রোফাইল গুলো দেখানো হয়েছে তাদের একটা নির্দিষ্ট মানে প্রমোশনের জন্য, অ্যাকচুয়ালি প্রচারের জন্য। এটা কোম্পানি দেখিয়েছে যে আমাদের মধ্যে কোন কোন ডেভেলপার, কারা কারা অ্যাচিভার, কারা কারা ম্যানেজমেন্ট টিম এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, তাদেরকে আমাদের কাছে ফোকাস করেছে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য, জাস্ট অ্যাজ পার প্রেজেন্টেশন পারপাস আমাদের পিডিএফ ফাইলে আমাদের এই ম্যানেজমেন্ট টিমদের দেখানো হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি, এটাই আমাদের কাছে সৌভাগ্য। আমরা এতটাই সৌভাগ্য যে আমরা একটা ব্লকচেন টেকনোলজির অনার, ফাউন্ডার সবাইকে আমরা দেখতে পেয়েছি, ম্যানেজমেন্ট টিম সকলকে আমরা দেখতে পেয়েছি। তো এটা আমরা সত্যিকারে খুব কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করি। অন্যান্য ব্লকচেন টেকনোলজির মধ্যে আমরা কোনো মানে আজও পর্যন্ত আমরা অনেক অনারদেরকে চিনি না, জানি না, কিন্তু অন্যান্য ব্লকচেন টেকনোলজি আজকে ডেভেলপমেন্ট হয়ে প্রত্যেক ব্লকচেনের মধ্যে প্রচুর মেম্বার, ভ্যালিডেটর, মাইনার, আজকের দিনে তারা মিলিয়নার বিলিয়নার হয়ে বসে আছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত তারা তাদের ফাউন্ডার, কো ফাউন্ডার, ম্যানেজমেন্ট কাউকে তারা দেখিনি বা চিনতে পারে না। কিন্তু আজকের আমাদের কাছে একজন ভ্যালিডেটর, সিম্পল ভ্যালিডেটর, সেও শুরু করার আগে এখানে আমরা সকল ম্যানেজমেন্ট টিম সকলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেটা আমাদের জন্য একটা সৌভাগ্য। আচ্ছা আর জয়নুল দা, মাস্টার স্টক আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন পারপাস পিডিএফটাই ছবি দেখিয়েছে। হ্যাঁ জয়নুল দা, গোপাল দা, হ্যাঁ বলুন। আমরা তো এই সমস্ত এই যে 201 ভার্সানটা দেখিয়ে এখানে এনাদেরকে হুম, ছবি দেখিয়ে আমরা তো ব্যবসা করেছি, এই মানুষের অবশ্যই। বিশ্বাসযোগ্যতা এইগুলো দেখিয়ে তো করেছি। তাহলে হ্যাঁ, ওটা কেন কোম্পানি আজ পরিচয় লুকায়নি। হ্যাঁ, ওটা কেন আজ হ্যাঁ পিডিএফ কোম্পানি, এ? আমি বলছি কথাটা শোনো, যে ওইগুলো হুম, দেখিয়ে কিন্তু আমরা ব্যবসাটা করেছি, মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছি। অবশ্যই। তাহলে আজ কেন ওটা মানানসই নয়? তাহলে কি বুঝবো যে আমেরিকার ডলারে? মানানসই নয় না, মানানসই ওইটা দেখানো যাবে, আজও পর্যন্ত ওইটা দেখানো যাবে এক্সপার না প্রেজেন্টেশন না, পারপাস, কিন্তু না, হোয়াইট আমি বলছি পেপারে, আমেরিকা, দেখো আমেরিকার ডলার থেকে কি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ছবিটা উড়ে গেছে? তা তো যায় না, ছবিটাতে তো হোয়াইট প্রবলেমটা পেপারে আজও তো আজও পর্যন্ত কোনো হোয়াইট পেপারে এইভাবে কারোর মানে প্রেজেন্টেশন পারপাস শুধুমাত্র তাদের প্রোফাইলটা দেখানো হয়। তা এমএসটি ব্লকচেন প্রেজেন্টেশন পারপাস পিডিএফ এ তাদের ম্যানেজমেন্ট টিম সবাইকে তারা প্রমোশন পারপাস সেখানে তাদের চেনা পরিচিতর জন্য এখানে তারা পিডিএফ এর মধ্যে দেখিয়েছে। তো আমরা এটাকে অ্যাজ পার প্রেজেন্টেশন পারপাস এখনো পর্যন্ত আমরা ইউজ করতে পারি। और এই जोएल जी, জন্য और एक चीज बताइए। হুম, यदि वो पीडीएफ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइव नहीं है। वो हर एक सेशन হুম, में, हर एक इवेंट में, हर एक फिनटेक के प्रोग्राम में, हर एक ऑडिटोरियम में, हर एक जगह पे हमारी टीम ऑफ एक्सपर्टीज और हमारे फाउंडर्स लाइव है। বিলকুল। এটাও একটা বিষয়। আজকে পিডিএফ ছাড়াও আমাদের কাছে পুরো লাইভ সেশন করছেন আমাদের কোম্পানি ফাউন্ডার, কো ফাউন্ডার, ম্যানেজমেন্ট সবাই অলরেডি আমাদের কাছে পরিচয়, মনে হয় কি বলবো, শুধু পিডিএফ এর মধ্যে নেই, আজকে ভিডিওর মধ্যে এসে গিয়েছে। লাইভ সেশন করছে সকাল 8টা, রাত্রি 9টা, অ্যাভেলেবেল আমাদের সঙ্গে সবসময়, যে কোনো সময় আমরা মানে কোলাবোরেশন করতে পারছি। এটা আমাদের কাছে একটা বিশাল সুযোগ। আমরা এই টেকনোলজি বা এই ব্লকচেনটা পেয়ে আমরা সত্যি গর্বিত ओके जोएल ভারতবাসী जी, হিসাবে, কারণ এটা और कोई সুযোগটা। क्वेश्चन है सर का? আচ্ছা, তা আমার 3 নম্বর প্রশ্ন, হুম,
জানাল দা, হ্যাঁ হ্যাঁ এফআইউ বলুন। লাইসেন্স কবে পাচ্ছেন? আপনারা তো আচ্ছা, বলেছিলেন যে ডিসেম্বর মাসের ফার্স্ট, আফটার ডিসেম্বরে পাওয়ার কথা, তাহলে এটা কি এখনো পাওয়া যাবে কি, এবং কবে পাওয়া যাবে? তো অভিজিৎ স্যার, আমাদের গোপাল চক্রবর্তীর নেক্সট যে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে এফআইইউ লাইসেন্স, যেটা আমাদের আফটার ডিসেম্বর পাওয়ার কথা ছিল, সেটা কবে देखिए, नागाद আসতে পারে বা एफआईयू কি হতে पारे? एफआईयू के लिए जब भी मेरी तरफ से या हमारी मैनेजमेंट की तरफ से बातें हुई है, उसमें एक बात आप हम्म सभी के सामने रखी गई कि फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी गवर्नमेंट ने हमें एक डेट दिया जिस डेट में हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोगों ने सबमिट किया है अभी। हम्म और नेक्स्ट 2 राउंड्स हो सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंटेशंस को वेरिफिकेशंस करके हमारे पास में हमारा एफआईयू लाइसेंस देंगी। अभी ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্ট এই যে ডিসেম্বরে কি ফার্স্ট হিয়ারিং হলো? हाँ, हमारी फर्स्ट তা- हियरिंग हो चुकी है। তাহলে বাকি যে দুটো হিয়ারিং বাকি থাকছে সেটা কতদিন লাগতে পারে? वो नहीं बता सकते सर, क्योंकि ये मेरे हाथ में या हमारे मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट जो एंटिटी है एफआईयू की, जैसे हमें नेक्स्ट डेट हमारे मेल के ऊपर हिट करेंगे तो उस डेट में हम लोग जाके उनको जो भी चाहिए उसको सबमिट करेंगे। তাহলে এফআইইউ লাইসেন্স ছাড়া কি ভারত কয়েনেক্স লঞ্চ हते पारे? 100% भारत कॉइन एक्सचेंज ऑलरेडी हमारा डेवलप होके रेडी है। जैसे ही एफआईयू कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, भारत कॉइन एक्स को हम लोग लाइव करेंगे। ओके, ओके सर। ओके। अरे नेक्स्ट अभिजीत सर, आप तो बंगाली लैंग्वेज बिल्कुल समझते हैं आप। হ্যাঁ, উনি তো बेंगोली আমার বাংলা लैंग्वेज तो কথা आप तो বুঝতেই बिल्कुल পারছেন, समझते हैं, हमको এই तो তো আপনি बोलना ही नहीं সরাসরি पड़ता है। আমাকে বলছেন বাংলাটা। हाँ नेक्स्ट 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 बहुत हाँ सारे हाँ हाँ लोगों का हाथ है हैंड राइज है। আচ্ছা, আপনারা বলেছিলেন এমইউএসডি আসবে, हाँ हाँ हाँ। এমইউএসডিটা কবে আসতে পারে? एमयूएसडी ऑलरेडी लाइव है। সেটা তো यूएसडीसी ई এই, यूएसडीसी यू, ई ये स्टेबल এটা কি, कॉइन है। यूएस, হ্যাঁ এটা কি এমইউএসডি नामे আসবে ना? देखिए, यूएसडीसी ई ये बाकायदा यूएसडीसी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से लाइव है। एम यूएसडी मतलब ही यूएसडीसी ई है। कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन जब लाइव करती है अपने स्टेबल कॉइन को तो उनको यूएसडीसी का प्रोटोकॉल लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है यदि उनको वर्ल्ड वाइड ट्रेड करना है तो, क्योंकि यूएसडीसी ये अमेरिकन गवर्नमेंट का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो সেটাই। यूएसडीसी তো ई এখানে मतलब एम यूएसडी अपना स्टेबल कॉइन। গোপাল দা, আমাদের ইউএসডিসি ই যেটা আমাদের স্টেবল কারেন্সি, আর এমইউএসডি সেম জিনিস। কারণ আচ্ছা, ইউএসডিসি ই যেটা, এটা আমাদের আমেরিকান যে মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ডলার, সেটার সঙ্গে এটা মার্জ আপ করে, এটাকে মানে ব্রিজ করে এই ইউএসডিসি ই এটাকে স্টেবল কারেন্সি আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে লঞ্চ করা হয়েছে। তো বিষয় হচ্ছে এমইউএসডি এবং ইউএসডিসি ডট ই এটা একদম সেম জিনিস। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। আর আপনারা যে ব্রিজ কি লঞ্চ করেছেন, ব্রিজ কিতে হুম। এখনো সোয়াইপিংটা কেন দেখতে আমরা পাচ্ছি না? ब्रिस्की के अंदर हम लोग स्वाइप सिस्टम अभी तक क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ब्रिज की प्राइमा फेज लाइव होके आप लोगों को हर टाइम अपग्रेडेशन के ऑप्शन दे रहे हैं। एक दिन ऐसे ही हो जाएगा ऑफिशियली अपग्रेडेशन आएगा जिसमें स्वैपिंग प्लेटफॉर्म लाइव होगा। থ্যাংক ইউ बिल्कुल। স্যার, थैंक यू। और थैंक यू सो मच सर। जी, नहीं 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 नहीं। ओके, एक रात चलिए के आगे अंदर सब बढ़ते कुछ हैं। हो जाएगा। आगे आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो नेक्स्ट जो है इनका हमारा पास राजीबुल इसके शेख राजीबुल अली है। मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो जी, प्लीज वेलकम शेख राजीबुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, कुछ तो आज बोलना है हमको। बोलिए बोलिए सर। और यहाँ पर जो बंदा है और सब बंदा ने यहाँ पर बंगाली में सबको स्टडी आता है। हम्म, আবদিন ভাই, সবকে সবাই তো বাংলা বোঝে। একদম একদম। বিষয়টা একটু আমার মতো করে বলি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হুম অনেক মানুষ আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে হুম এটা এই নেই কেন, ওই নেই কেন, সেই নেই কেন। প্রথমত একটু ব্লক চেন নিয়ে আমি সকলকে স্টাডি করতে বলবো স্যার।
আজকে আপনারা গুগলে গেলে ব্লক চেন স্টাডি করতে পারবেন। ব্লক চেনের কোনো মালিক হয়নি স্যার। আমরা, আপনি যেমন মালিক, আপনি যতগুলো ফিকশন কিনেছেন, আপনারা আমরা প্রত্যেকেই মালিক। প্রমোদ বড়াটের স্যারও মালিক, আমরাও মালিক, প্রত্যেকেই আমরা অনার। একদম ফলে প্রমোদ বড়াটের স্যার যদি আজ না থাকেন, ঈশ্বর না করেন, তাহলে কি ব্লকচেন বন্ধ হয়ে যাবে? আজকে ম্যানেজমেন্টে যে বা যারা আছেন, কাল যদি না থাকেন, ওনার পরিবর্তে আরো কেউ আসতে পারেন, এটা জীবনে কোনোদিন বন্ধ হবে না। নাম্বার ওয়ান, কোন চিট ফান্ড 4G স্কিম তার ওনার যদি মারা যায়, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে, হুম সেটা কোনোদিন চলতে একদম পারে না। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, হুম এক মিনিট স্যার, কে আবার ফোন করলো এখন? হুম নাম্বার টু, এমএসটি ব্লক চেন এমন একটা ব্লক চেন যেটা ইন্ডিয়ার ফার্স্ট লেয়ার ওয়ান ব্লক চেন। আমরা সকলেই, আমাদেরও আগে ব্লক চেনের অতটা নলেজ ছিল না, হয়তো এখনো নিতে হবে, প্রতিনিয়ত আপডেট আসছে। আমরা যারা লিডার আছি, আমাদের যত জুনিয়র আছে, আমরা যেখানে যেখানে যাচ্ছি, এ কিন্তু অফ হয়ে গেছে ভিডিও মনে হয়, ঠিক আছে। আমরা যেখানে যেখানে যাচ্ছি, আমাদের দায়িত্ব নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো ফলোয়ার্স বানাতে হবে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে। এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমরা এখানে যারা আছি তারা কিন্তু প্রত্যেকের লিডার, প্রত্যেকের একদম নিজস্ব কমিউনিটি আছে, এটা কিন্তু আমাদের মাথায় নিতে হবে। আজকে অর্থনৈতিক রেভলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের এমনি এমনি আসেনি। আজকে একজন ডাক্তার তার কর্মের মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক রিভলিউশন এনেছে, একজন চাষি তার চাষের মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক রিভলিউশন এনেছে, একজন মন্ত্রী প্রাইম মিনিস্টার তার কাজের মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক রিভলিউশন আসছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের জন্য অনেক রক্ত দিয়েছে আমাদের বিপ্লবীরা, এখনো আমাদের স্মরণের মধ্যে আছে। আমরা চিরজীবন তাদেরকে শ্রদ্ধা করি। তারা দেশ স্বাধীন করে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা শুধু ঘুমিয়ে থাকবো, দেশের অর্থনৈতিক রিভলিউশন আসবে না? আগামীকাল এখান থেকে অর্থনৈতিক রিভলিউশন আসবে। আজকে ইন্ডিয়ার অর্থনৈতিক রিভলিউশন আসবে এই এমএসটি ব্লকচেন থেকে। তার জন্য একটা সময় লাগে, লিকুইডিটির জন্য সময় লাগে স্যার, এত তাড়াতাড়ি বললে হবে না। এটা কোনো আরওআই প্ল্যান না। যে প্ল্যান সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আরওআই দিবে, সেটা কোনদিন রিয়েল প্রজেক্ট না। আপনি তাকিয়ে দেখুন, আপনি যদি তাকিয়ে দেখেন ইথেরিয়ামের দিকে, 2015 সালে এসেছিল, 18 পর্যন্ত কোনো কাকেও কোনো প্রজেক্টে কোনো প্রফিট দিতে পারেনি। আপনি তাকিয়ে দেখুন 2017 বিএনবি এসেছিল, 2021 পর্যন্ত কেউ কোনো প্রফিট পায়নি। আপনি তাকিয়ে একদম দেখুন সোলানার দিকে, আপনি তাকিয়ে দেখুন প্রত্যেকটা প্রজেক্টের দিকে যেটা ব্লক চেন। আপনি ব্লক চেন দিয়ে কম্পেয়ার করুন। আপনাকে আগে বুঝতে হবে কেন আমি সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বলছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় অরিজিনাল একদম ম্যানেজমেন্ট থেকে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের এমএসটি ব্লক চেন নিয়ে প্রচুর নলেজ পাওয়া যায়, যেখান থেকে আপনারা স্টাডি করতে পারবেন। আপনাদের কাছে টুইটার আছে, ইনস্টাগ্রাম আছে, আপনাদের কাছে ফেসবুক আছে। প্রত্যেকের, আপনি যেখানে যাচ্ছেন প্রোগ্রামে, প্রতিটা মেম্বারকে ফলো আপ করুন। जितना मेंबर आपके पास है, हर एक मेंबर को फॉलोअर बनाइए। मैं जहां जहां प्रोग्राम में जा रहा हूं, वहां पर पहले मेरा काम ये है कि मैंने जो मेंबर मेरा पास बैठा है, जिसका जो जिसने जिस बंदा फॉलो नहीं किया है, उसको पहले फॉलोअर किया है। जिसका पास ट्विटर है, उसके बाद ट्विटर कीजिए, जिसके पास फेसबुक है, जिसका इंस्टाग्राम है, जो कुछ है, व्हाट्सअप है, मतलब जो कुछ है, अब फॉलो कीजिए। पहले फॉलोअप बनाइए। यहाँ से बहुत बड़ा ताकत मिलेगा हमको, हम सभी को। नंबर टू, ये कोई भी কোম্পানি আরওআই যারা দিচ্ছে, তারা কিন্তু রিয়েল কনসেপ্ট না স্যার, একদিন না একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে 2009 থেকে 90 দশক থেকে আপনি দেখুন, যারা আরওআই দিয়ে এসছে তারা কিন্তু আজকে কেউই নেই। 1 বছর 2 বছর 3 বছর পর্যন্ত ছিল। আমার যদি কোথাও কথার একটু মিস্টেক হয়ে থাকে, আপনি আমাকে ডাইরেক্ট ফোন করতে পারেন, আমি স্বীকার করে নেব। আরওয়াই প্ল্যান মানে চিট ফান্ড, চিটিংবাজি করে মানুষের সঙ্গে চলে গেছে সর্বশান্ত করে। এমএসটি ব্লক চেনে আমি এখান থেকে 2025 জানুয়ারি মাসে ইনভেস্ট করেছি, এখনো পর্যন্ত শুধু রিওয়ার্ড পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের এমএসটি ব্লক চেন কোথাও আমাকে বলেনি, বা আমাদের কাকেও বলেনি যে আপনি একটা কিনেছেন 1 বছরে বা 10 বছরে বা 5 বছরে বা 50 বছরে আপনাকে ডবল দেবে বা কিছু দেবে। এমএসটি ব্লক চেন লিকুইডিটি এনে দেবে। হয়তো 1 বছরে আমি 100 গুণ পেয়ে যেতে পারি, কত পাবো আমিও জানি না, এটা আমার প্রমোদ বোরাটা স্যারও বলতে পারবেন না। নাম্বার টু, আপনাকে বুঝতে হবে ম্যানেজমেন্ট, আমাদের কাছে যে ম্যানেজমেন্ট আছে, আপনারা যদি জানেন এমএসটি ব্লক চেনের ম্যানেজমেন্টে কে বা কারা আছে, আপনি গুগল সার্চ করুন। আমাদের কাছে যে টেকনিক্যাল টিমটা আছে, তারা এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ড ফেমাস। আজকে আপনাদের সামনে আমাদের এইচওডি অভিজিৎ যাদব স্যার बैठा है। अभिजीत यादव सर इतना सस्ता में हमारा पास चला है, इसने कदर नहीं हम लोग किया। सर का जो नॉलेज है, सर का जो मतलब एडुकेशन है, सर का जो टेक्निकल मतलब जानकारी है, वो ऐसा मीटिंग लेने से 50,000 रुपया आपको सबको लगेगा। তো সস্তায় কিছু যদি আমরা পেয়ে যাই, সেগুলো আমরা কদর করি না। এটা হচ্ছে আমাদের
একটা কি বলবেন পবিত্রগত গুণ। আপনারা নলেজটা জোগাড় করুন আর প্রতিনিয়ত আমাদের এমএসটি ব্লক চেন। আজকে আপনি বলুন এমএসটি ব্লক চেনের এখানে যতজন আছেন আজকে কম বেশি প্রায় 58 জনের মতো আছেন। এই 58 জন মানুষ এমএসটি ব্লক চেন শুধু নয়, ব্লক চেন সম্পর্কে আপনাদের কাছে নলেজ কতটা ছিল? এমএসটি ব্লক চেনে এসে আপনাদের কাছে নলেজ একটা হয়েছে, এটা তো আপনারা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তাহলে এমএসটি ব্লক চেন আগামী দিনে আমাদের কি দিবে এই নিয়ে আমরা দ্বন্দ্বে, আমরা শুধু আমাদের কাজটা করতে থাকি। এমএসটি ব্লকের ম্যানেজমেন্ট আছে, কোর কমিটি আছে, এমএসটি ব্লকের টেকনিক্যাল পয়েন্ট আছে, তারা লিকুইডিটির কাজটা করছে, আমাদের শুধু কাজটা আমরা করি। এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আগামী দিনে আপনাকে আর তাকিয়ে দেখতে হবে না স্যার। একটা দিন আসবে যে দিনটা আপনি গর্বের সঙ্গে বলতে পারবেন আগামী দিন আসছে খুব কঠিন দিন স্যার। আমি সকলের সামনে একটা কথা বলি যে আগামী যে দিন আসছে আমাদের যেভাবে জীবনটা কাটছে আপনার আমার সন্তানের সেভাবে জীবনটা কাটবে না স্যার। টেকনোলজি অনেক হাই হয়ে যাবে। আজকে আপনি আমি যে জায়গাটায় আছি আজকে আমরা চাকরি বাকরির জায়গাটা ক্লোজ হয়ে যাবে, যেখানে রোবট দিয়ে কাজ হবে স্যার। অনলাইন প্রোটোকলে আসছে, চাল ডাল তেল নুন আটা ময়দা শাকসবজি ফলমূল মাছ মাংস সমস্ত কিছু অনলাইন প্রোটোকলে আসছে। আপনি বলবেন চাকরি বাকরি ছেড়ে ব্যবসা করবেন, ব্যবসার জায়গাটাও ক্লোজ হয়ে যাবে। ফলে আগামী দিন অনেক কঠিন হয়ে যাবে। আপনি কি বলবেন স্যার আপনার সন্তান অনেক বেশি মেধাবী, আপনি বলবেন যে আমার সন্তানকে ডাক্তার করবো, এআই দিয়ে ট্রিটমেন্ট হবে আগামী দিনে। ফলে এগুলো আপনাকে ভাবতে হবে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 51% ডিসকাউন্টে ডক্টরেট ডি সিপ্লা অ্যালকামের ওষুধটা আপনার বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আপনি একটা ওষুধ দোকান করেও কত পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে ওষুধ চালাতে পারবেন সেটা আপনি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারবেন না। আজকের দিনে শুধু নলেজের প্রয়োজন আছে স্যার। আজকে আমাদের কাছে প্রমোদ বড়াটা স্যার, আমাদের কাছে মহেন্দ্র ধুমসা স্যার, আজকে আমাদের কাছে এইচওডি স্যার, আজকে যে আমাদের কাছে আসছে, আমাদের কাছে যে নলেজটা দিচ্ছে, একদিন আসবে যে দিনটা আমরা স্যারেদেরকে পাওয়ার জন্য 1 মাস কেন 1 বছর ওয়েট করতে হবে স্যার। আজকে খুব সহজে পাচ্ছি আমরা যা খুশি তাই করে ফেলছি। আর একটা কথা মাথায় রাখবেন, যে কোনোদিন আপনার বন্ধু হবে সে কোনো আপনাকে 4G স্কিমে নিয়ে যাবে না স্যার। আজকে আপনি বলুন প্রতিটা কনসেপ্ট আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা খাইয়েছেন, আর এখানে একটা বা 10টা কিনে আপনি ভাবছেন সব টাকা তুলে নেবেন, কোটি কোটি টাকার মালিক হবেন। আপনাকে আমাকে মাথায় রাখতে হবে অন্তত 500 করে ফিকশন কেনার টার্গেট রাখুন স্যার। প্রত্যেককে আমি বলছি, আমি নিজে 500 কিনেছি স্যার, আমার টোটাল ফ্যামিলি 1000 কিনেছে। কারণ আমি জানি আগামী দিনে এইখান থেকে আমি একটু লস করব না। আগামী 2 বছর যেতে দিন, তারপরে আমি দেখাবো আমি কে। আপনি দেখাবেন আপনি কে। আজকে যারা আপনাকে চোখ দেখাচ্ছে কালকে তাদের চোখ ফিকে হয়ে যাবে স্যার, এত বড় গ্যারেন্টি দিয়ে কথা বলছি। আমার কথার মধ্যে যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন আমাকে ক্ষমা করবেন। তো বিষয়টা হচ্ছে যে যে প্রশ্নগুলো আপনারা করছেন ফিউ লাইসেন্সের ব্যাপারে, ফিউ লাইসেন্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের যখন দিবে, আমাদের ম্যানেজমেন্ট যদি 1 মিনিট পরে দেখায় 1 মিনিট আগে ফিউ ডিপার্টমেন্ট আপনি দেখতে পাবেন। অলরেডি ফিউ লাইসেন্স হরেক সংস্থাকে দেওয়া চলছে। অনেক এক্সচেঞ্জ ছিল আপনাদের কাছে, আপনারা স্টাডি করুন 24-25 খানা এক্সচেঞ্জকে ফিউ লাইসেন্সের জন্য কত টাকা প্লান্টি দিয়েছে তারা এক্সচেঞ্জ চালু করে, কত টাকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্লান্টি নিয়েছে। ফলে আজকে আমাদের স্টেবল কয়েন নিয়ে কথা বলছেন স্যার। ইউএসডিসি অনেকে এর আগে অনেক কথা বলেছেন ইউএসডিসি নিয়ে স্যার, আপনি গুগলে সার্চ করুন ইউএসডিসি 3 মাস ছাড়া অডিট করা হয়, যেটা ইউএসডিটি করা হয়নি। এমএসটি ব্লক চেন এতটাই স্ট্রং যেটা ইউএসডিটির সঙ্গে আমরা আছি, আগামী দিনেও থাকবো। আমাদের প্রত্যেকটা প্ল্যান নিয়ে আপনি আজকে আমাদের এই 15 মাসে যা করেছি স্যার, বিগত দিনের যে ব্লক চেন গুলো আপনি নাম শুনে আসছেন যাদের আজকে লিকুইডিটি দেখতে পাচ্ছেন, তারা এই 15 মাসে কিছুই করতে পারে না। আপনি দেখুন, চিন্তা করুন, আপনি এটা ভাববেন না যে আজকে দিয়ে আজকে পাবো, সেটা হচ্ছে চিট ফান্ড। সেখানে আপনার দিতে দিতে নিয়ে চলে গেছে সবকিছু সর্বশান্ত। চোখের জলে নাকের জলে আজকে মানুষ কেঁদে মরছে, কত মানুষ বাড়ি ছাড়া, আমার দেখতে কত মানুষ বাড়ি ছাড়া স্যার। এগুলোর দিকে খেয়াল করবেন। আর যখন আমরা এইচওডিকে স্যারকে পাবো, আমরা যখন প্রমোদ বুরাটে স্যারকে পাবো, আমাদের কো ফাউন্ডার ডাইরেক্টরকে পাবো, তখন আমরা একটু মূল্যবান অবশ্যই প্রশ্ন করবো। যে প্রশ্ন করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন, আমি খুবই হ্যাপি, খুবই খুশি। ওনার প্রশ্নের মাধ্যম থেকে আমিও কিছু অ্যান্সার পেয়েছি। তো প্রতিনিয়ত আমরা যখন স্যারেদের পাবো তখন খুব মূল্যবান কথাগুলোই আমরা শুনবো, এটা আমি আশা করছি সকলের কাছ থেকে। আর শেষে আবারও বলবো, যে বা যারা কমিউনিটির কাছে গিয়ে পৌঁছবেন, প্রথমে সকলকে ফলোয়ার্স বানাবেন। আমরা নিজেরা মালিক, আমরা মালিক হয়ে আমার কোম্পানির আমার সিস্টেমের ফলোয়ার্স আমরা না। ভাবতে পারেন আমরা কোথায় পড়ে আছি, এই নলেজটা আমাদের রাখতে হবে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আমার কথায় কেউ দুঃখ পেলে মুঝে থোড়া মাফ कर दीजिए प्लीज। नहीं ওকে नहीं স্যার, बिल्कुल कोई बात থ্যাংক ইউ नहीं। স্যার। थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের রাজিবুল শেখকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর সেই সঙ্গে আমাদের কাছে রয়েছে ডক্টর হরিশ চন্দ্র। আমি ডক্টর হরিশ চন্দ্রকে আনমিউট করলাম।
Please welcome Dr. Harish Chandra ji. Okay, Please. thank you. Thank हेलो, you, sir. थैंक यू. गुड इवनिंग सर. Good evening, sir. सभी को गुड इवनिंग. धन्यवाद. मेरा एक सवाल है क्या है, वो जो मेरा जो एआई बोट है ना, एमएसटी बॉडी, जी वहाँ जी पर जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, वहाँ पर एक आंसर आ रहा है, और दूसरी जो गूगल में सेम क्वेश्चन किया वो अलग आंसर आ रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत. उसका रीजन ये है सर कि जी एमएसटी बड़ी ये एआई बोर्ड सिस्टम है, और एआई बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन में है क्योंकि ये स्टार्टअप में है, बराबर है। जी जी तो जी जी एआई बोर्ड क्या करता है कि पूरी जो जानकारी है वो जहां जहां डाटा अपना फीड है वहां से कलेक्ट करके आपको वो बातें बताता है। जी जी. हाँ, ओके, वही कोई दिक्कत की बात नहीं है तो. नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं दिक्कत नहीं. की बात नहीं है। जो और एक सवाल क्या, मेरा हाँ जिस टाइम में प्रोग्राम कर रहा हूँ उस टाइम में एक बताते जी, हैं क्या, जो हाँ क्वेश्चन किया, जो हाँ मेरा जो सेक्शन होल्डर है ना, वैलिडेटर बनना चाहता है, वैलिडेटर हो गया, होने के हम्म, बाद मेरा जो टीम लीडर है और वैलिडेटर है, जिस हम्म, दिन तक नोड सेलिंग प्रोग्राम चल रहा है, हम्म, इनका कमीशन जो आ रहा है, नोड वैलिडेशन प्रोग्राम शेष होने के बाद कोई कुछ हम्म। इनकम मिल सकता है? जरूर मिल जरूर मिल सकता है, क्योंकि आप कितना? एज अ वैलिडेटर हो, बराबर जी है। और जी. एज अ वैलिडेटर आपको अगले 19 साल तक हाँ, आपके नेटिव कॉइन्स आपको मिल रहे हैं एज अ वो तो. वैलिडेटर, बराबर है। हाँ हाँ, दूसरी जी बात, जी जी. बेस्ट. दूसरी बात, आपने आपके यदि नेटिव कॉइन्स होल्ड किए प्रूफ ऑफ स्टेक में, तो ब्लॉकचेन के ऊपर जितने ट्रांजेक्शन्स बन रहे हैं उस ट्रांजेक्शन्स का आपको गैस फीस और ट्रांजेक्शन फीस का रिवॉर्ड मिल सकता है, कितना दिन तक, जितना दिन तक वो जितना तक स्टेक. आप होल्ड करोगे। अच्छा, जो 20 साल से 50 साल हो गया तो 50 साल तक पाने के बाद. देखिए, ब्लॉकचेन जब तक चलेगी और जब तक जी. आप आपके कॉइन्स को होल्ड रखोगे तब तक आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और वो कितना तक और अमाउंट बोल सकता है? सर, ऐसे अमाउंट में कोई कुछ चीजें नहीं होती है लेयर वन ब्लॉकचेन में। अच्छा अच्छा. और जो लीडर बनना चाहते हैं ना, अ, मतलब जिस लोगों को वैलिडेटर हो, वो तो स्टेकिंग करने के बाद रिवॉर्ड मिल सकता है और गैस फीस मिल सकता है, लेकिन जो लीडर है, हम्म एवेंजर, स्पाइडर और रिवॉर्ड का और स्पार्टन स्पाइडर, इस हम्म। इन लोगों का कोई नोड वैलिडेशन प्रोग्राम होने के बाद कोई इनकम मिल सकता है? देखिए, एक बार नोड वैलिडेटर का जो प्रोग्राम है जी वो नोड वैलिडेटर का प्रोग्राम यदि क्लियर हो गया तो उसके बाद में इनकम के लिए डिफरेंट जो प्रोग्राम आएंगे, जैसे अर्थ कार्बन का प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पे आपको जी आपकी टीम वहां पे कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, बराबर है। कल जाके लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म्स आए, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स आए कंपनी की तरफ से, यानी एमएसटी की तरफ से। जी जी उसके अलावा आपको यदि आपके कॉइन्स को लिक्विडिटी में रखना है और वहां से आपको रेवेन्यू चाहिए तो वो भी हो सकता है। आप यदि कल जाके कॉपी ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, एनएफटीज में ट्रेड करने वाले हो तो वहां पे भी हो सकता है ना। वहाँ पर कनेक्ट कैसे होगा वो टीम हाँ, का? वो वहाँ पर जो लेकिन मतलब क्या है, जो कार्बन प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है. एक एक सेकंड खाली मुझे टाइम दे दीजिएगा। जी जोएल जी, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं दूसरे आईडी से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा क्योंकि 9 बज चुके हैं बिल्कुल और बिल्कुल. अपनी जूम जो है वो नेशनल जूम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं दूसरे अकाउंट से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा। ओके ओके, बिल्कुल जी सर. तो থ্যাংক ইউ সো মাচ অল কমিউনিটি মেম্বার, অ্যাচিভার্স, লিডার্স। একটু সবাই একটু কোঅপারেট করবেন। আমাদের অভিজিৎ স্যার ইতিমধ্যে একটু রিকানেক্ট করছেন, যেহেতু ওদিকে আমাদের অফিসিয়াল জুম সেশন শুরু হতে চলেছে। তার জন্য আমাদের কাছে অভিজিৎ স্যার একটু অন্য নাম্বার থেকে তিনি কন্ট্যাক্ট করবেন আমাদের সঙ্গে। তার জন্য
একটু কোঅপারেট করবেন প্রত্যেকে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে, আপনারা যেভাবে কোঅপারেট করছেন। আমাদের আমাদের মধ্যে যারা যারা উপস্থিত রয়েছেন, আপনাদের বাকি যদি কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে তাহলে আপনারা জানাতে পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকে হ্যান্ড রাইজ করে রয়েছেন, আপনারা যেমন রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের থেকে আপনারা আপনাদের মতো প্রশ্ন মতামত জেনে নিতে পারেন। তো তার জন্য আমাদের মধ্যে জাস্ট এন্ট্রি নেবেন আমাদের অভিজিৎ যাদব স্যার, একটু কোঅপারেট করবেন প্রত্যেকে। ততক্ষণ যদি বাকি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে তাহলে আপনারা মাইক অন করে জানাতে পারেন। হ্যালো। হ্যাঁ, হরিশ হ্যাঁ হরিশ দা বলুন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। বলছিলাম ওই মানে যেটা আমাদের যে কার্বন মনে করুন যে আমার যা কমিউনিটি আছে বা আপনার কমিউনিটি আছে, সিস্টেমের যে যে যেমন মানে লিডার আছেন, প্রত্যেকের কমিউনিটি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এই হুম। মানে যে প্রজেক্ট গুলো আসবে, আপকামিং প্রজেক্ট গুলো, তাতে কি হ্যাঁ হ্যাঁ। অটোমেটিক্যালি ওই সিস্টেম অনুযায়ী কানেক্ট হবে, না আবার নতুন ভাবে মানে সাজিয়ে কানেক্ট করতে হবে? সেটা আমাদের যে আমাদের কো ফাউন্ডার মিস্টার প্রমোদ বরাটে, তিনি হ্যাঁ, ওই হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিষয়টা আমাদের কাছে ফাইনালি ঘোষণা দেবেন, তখনই আমরা আপনাদের কাছে সেই আচ্ছা, আচ্ছা, বিষয় নিয়ে ডিসকাস করতে পারবো। আচ্ছা, তবে আচ্ছা, এটুকু ঠিক আছে। বলতে পারি যে আপনি যদি এখানে কোনো র্যাঙ্ক অ্যাচিভ করে থাকেন তাহলে আপনার র্যাঙ্ক ওয়াইজ আপনি আমাদের কার্বন প্রজেক্টের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আচ্ছা। ওখানে প্রসিডিওরটা কেমন? ওখানে প্রসিডিওরটা আপনার কার্বন প্রজেক্টটাকে আপনাকে সেখানে আপনাকে প্রমোট করতে হবে। সেখানে কার্বন আচ্ছা। প্রজেক্টটাকে তার মধ্যে অনেক বিজনেস আছে, সেগুলোকে আপনাকে সেল করতে হবে। ও, তার মানে ঠিক আছে, যারা যারা যদি সেল করবে তারা ওই কমিউনিটিতে আসবে, এই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা যেহেতু ওই র্যাঙ্কে রয়েছে তাই ওই র্যাঙ্কের যে কমিশন স্ট্রাকচার যা রয়েছে সেই ওয়াইজ হ্যাঁ, তাদের হ্যাঁ। কাছে কমিশন ডিস্ট্রিবিউট হবে। তার ও, মানে আচ্ছা, মাস্টার আচ্ছা। অফ প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের জন্য একটা বিজনেস অপরচুনিটি খুলে দিয়েছে, যে ইন ফিউচার আমাদের জন্য যখন নোট অ্যাভেলেবেল আর থাকবে না, নোটগুলো সম্পূর্ণ সেল আউট হয়ে গেলে, তখন হ্যাঁ, আমাদের হ্যাঁ, জন্য হ্যাঁ। একটা বিজনেস অপরচুনিটি আমাদের জন্য, আমরা ওই নোটগুলো না থাকার ফলে আমাদের কাছে বিজনেস অপরচুনিটি হিসাবে আমাদের কাছে কার্বন প্রজেক্ট তুলে দেবে। আর সেই কার্বন প্রজেক্টটাকে আমরা অল ওভার ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে আমরা সেটাকে নিয়ে বিজনেস করতে পারবো। ও, আচ্ছা, আচ্ছা। এবারে যে সেখানে যে মানে সেই র্যাঙ্ক অনুযায়ী তো সেখানে স্টার্ট আপ করতে শুরু করতে পারবে, এই তো? একদম একদম একদম। এবার ওখানে যারা যারা মানে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কাজ করুক বা নাই করুক, আবার নতুন ভাবে শুরু হবে, তার মধ্যে কমিউনিটি বেসিস তাদের ইনকাম আসবে, এই তো? না প্রিভিয়াস কমিউনিটির উপরে কিছু আছে? প্রিভিয়াস কমিউনিটির উপরেই আসবে, কারণ আপনার নতুন করে আর কমিউনিটি বিল্ড আপ করতে হবে না। আপনার যে কমিউনিটি আছে শুধু সেই কমিউনিটির মধ্যেই আপনি সেটাকে প্রমোশন করবেন, আপনি সেখান থেকে বিজনেস আপনি পেয়ে যাবেন। ও, আচ্ছা, আচ্ছা। মানে যে র্যাঙ্কে আমি অ্যাচিভ করবো সেই র্যাঙ্ক অনুযায়ী পাবো, এই তো? একদম একদম গুড, সেম। গুড। থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে। আর বাকি হ্যাঁ, যদি আর ভালো আর থাকবেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আর আপনার কোশ্চেন হয়ে গেলে আপনি হ্যান্ড লোয়ার হ্যান্ড করে নেবেন। হ্যাঁ, আমাদের আরেকটা বিষয় জানছিলাম আর কি। মূল কথা, কিছু হুম কিছু জায়গায় যেটা আমাদের গোপাল বাবু বললেন, হ্যাঁ, মানে এটা হুম। হয়তো যেহেতু আপকামিং প্রজেক্ট সমস্ত কিছু কমপ্লিট হতে তো সময় লাগবে। আনুমানিক হ্যাঁ মোটামুটি হ্যাঁ আমাদের যে এক্সচেঞ্জ এনলিস্টেড মানে হবে আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটার হ্যাঁ। কোনো নির্দিষ্ট সময় কি মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেট আমাদের আমরা জানতে পারি? না ওটা নোট হ্যাঁ, ভ্যালিডেশন কমপ্লিট হলে তারপরে? আমাদের সেটা আমাদের যে হেল্পিং প্রসিডিওর আছে আপকামিং নভেম্বরে, নভেম্বরের নভেম্বর 26। নভেম্বরের হ্যাঁ। নভেম্বরের 26 আমাদের হেল্পিং আছে, তো হেল্পিং এর আগে আগে সবকিছু সম্ভব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, সেইটাই। যদি না হয় তাহলে মোটামুটি পরেই হবে। আর হয়ে মানে যাবে। নোট ভ্যালিডেশন হ্যাঁ কোম্পানি ভ্যালিডেশন কম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। নোট সেলিং হয়ে গেলে হবে, না তার আগেও হতে পারে? তার আগেও হতে পারে, নোট সেলিংটা কোনো ফ্যাক্টর নয়। আচ্ছা, আচ্ছা। ওর ঠিক আছে। মানে সিস্টেম অনুযায়ী হবে, এই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম সিস্টেম অনুযায়ী। তো চলুন, আমাদের মধ্যে ঠিক আছে। অভিজিৎ ওকে, স্যার ওকে। লাইভ হয়ে থ্যাংক গিয়েছেন। ইউ। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। সেই সঙ্গে যদি বাকি কোনো কমিউনিটি মেম্বারের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা জানাতে পারেন। তো অভিজিৎ স্যার, ওয়েলকাম স্যার। जी 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 जी। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि তো आपके जो सवाल है वो फिर से हम लोग बात करें उस सवालों पर। बिल्कुल। जी हाँ हाँ, तो यहाँ पर नूरुल जी हैं, नूरुल है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। नूरुल जी प्लीज, जी वेलकम नूरुल जी, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन सवाल अगर हो তো আপ पूछ सकते हैं। নুরুল দা, আপনি যদি নিজেকে আনমিউট করতে পারেন, আপনার কাছে আনমিউট রিকোয়েস্ট গেছে, আপনি করতে পারেন। हेलो। और- जी सर। হ্যাঁ হ্যাঁ
हेलो सर। हेलो। जी सर, হ্যাঁ 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 बोलिए শুনতে बोलिए। পাচ্ছি পরিষ্কার। अब मेरा एक क्वेश्चन था सर, तो मेरा एक ट्रस्ट वॉलेट है, वो जी जो आईडी का হুম जो ट्रस्ट आईडी से जो ट्रस्ट वॉलेट है वो पुट किया था, तो जी वो डिलीट हो गया। तो जी दूसरा बार दोबारा पुट किया, तो दोबारा जैसे पुट किया ना, वो सब चला गया। जी। एक सप्ताह के अंदर वो सब आ गया, लेकिन वो जो ट्रैकिंग का जो है ना, 50% जो ट्रैकिंग है, हाँ, तो वो जो विड्रॉल करेंगे वो विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं समझा नहीं, एक बार फिर से पूछेंगे। आईडी में जो ट्रस्ट वॉलेट जो पुट किया था ना, जी तो वो ट्रस्ट वॉलेट तो डिलीट हो गया पहले बात। तो दूसरा बार वो आबार दूसरा बार ट्रस्ट वॉलेट पुट किया था, जी। तो वो ट्रस्ट वॉलेट पुट किया, वो 4000 कॉइन था, तो वो चला गया। नहीं, तो वो कहीं पे भी नहीं जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई नया वॉलेट ऐड करते हो, तो आपके हम्म, पुराने वॉलेट के जो कॉइन्स है वो पुराने ही वॉलेट में शो होते हैं, यानी पुराने ही एड्रेस पे शो होते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने फ्रैक्शन बाय किया, जिस दिन आपने आपका एड्रेस वहां पे ऐड किया ना, उस दिन से जब तक आपने एड्रेस चेंज नहीं किया, तब तक हम्म, आपके वैलिडेशंस के कॉइन आप ही के एड्रेस के ऊपर है। और जिस दिन आपने एड्रेस चेंज किया, उसके बाद के जितने भी कॉइन्स वैलिडेशंस के आपको आए हैं, वो आपके सेकेंड एड्रेस के ऊपर आए हैं। तो वो कॉइन कहीं पे भी नहीं गए, वहां पे दो एड्रेस है, दोनों एड्रेसेस के वॉलेट को आप कनेक्ट करके आपके कॉइन्स विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन सर पहले का जो वॉलेट था वो तो चला गया, वो तो उसके लिए फिर कोई नहीं ऑप्शन मिलेगा। नहीं है, जब तक आपके पास में उसके फेजेस नहीं आएंगे तब तक आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई भी कॉइन किसी भी एड्रेस का किसी भी एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर करने का ऑप्शन तभी हो सकता है जब उसके फेजेस आपके पास में हो और आप उसको परमिट करें विड्रॉल के लिए। तो पहले जो वॉलेट लगाया है वो कभी नहीं मिलेगा क्या? नहीं, आप उसके फेजेस यदि लेके आएंगे, फेजेस आपके रिकवर होंगे, तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका ही है, वो ठीक आप है ही के सर। एड्रेस के ऊपर है। जब वो तो चाहे मेरा, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। वो तो नहीं है, वो चला गया था, डिलीट मार के वो चला तो गया। देखिए, कोई भी वो तो आप पता ब्लॉकचेन में जब आप वैलिडेटर बनते हो ना सर, तो वैलिडेटर को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है उसके कॉइन्स को होल्ड हम्म, करना और उसके वॉलेट के फेजेस को होल्ड करना, सेफ हम्म, रखना, क्योंकि वो मोस्ट हम्म, इंपॉर्टेंट है। आपने ये भी चीजें सुनी है कि ब्लॉकचेन में बिटकॉइन एक एक हजार पड़े हुए हैं, लोगों के वॉलेट में एक एक हजार बिटकॉइन पड़े हुए हैं, बट उनको आज की डेट में विड्रॉल इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनके फेजेस उनके पास में नहीं है, उनके कीज उनके पास में नहीं है। हाँ। तो ब्लॉकचेन में आपके फेजेस कीज जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके। हाँ। তো নুরুল দা, আশা করি আপনার প্রশ্ন আপনি ক্লিয়ার হয়েছেন। মানে আপনি যে পুরাতন ওয়ালেট অ্যাড্রেস করেছিলেন তার যে রিকভারি পাসফ্রেজ সেটাকে আপনি যদি আবার খুঁজে পান, আপনি ওটাকে দিয়ে আপনার ওয়ালেটে আপনি আবার পুরাতন রিকভারি পাসফ্রেজ দিয়ে আপনি সেটাকে ইম্পোর্ট করলে আবার পুনরায় আবার আপনি পুরাতন ওয়ালেটটাকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। তার মধ্যে हम्म। যতগুলো আপনার এমএসটিসি থাকবে আপনি অ্যাক্সেস নিতে পারবেন। তো যখনই हाँ আপনি हाँ ওয়ালেট ক্রিয়েট করে हाँ। সাবমিট করাবেন কাউকে, তাদের যে প্রথম যে আপনারা রিকভারি পাসফ্রেজটাকে পাবেন সেটাকে আপনার যত্ন করে আহ, খাতাতে আপনারা লিখে রাখবেন। এটা हाँ, একবার वो হারিয়ে গেলে আর কখনো পাওয়া যাবে না। पहले सोचा नहीं है ना, इसीलिए तो वो चला गया। वो बाद में सोचा, तो वो जो नेक्स्ट टाइम में जो वॉलेट पिक किया था वो तो वो फिर हम ठीक ठाक रखा है। जी হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওয়ালেট অ্যাড্রেস ওখানে চেঞ্জ করে নেবেন। যদি আপনি পুরাতন ওয়ালেট অ্যাড্রেসটা হারিয়ে ফেলেছেন, তাহলে নতুন ওয়ালেট অ্যাড্রেস যেটা ক্রিয়েট করেছেন তার অ্যাড্রেসটাকে নিয়ে আপনারা মাস্টার স্ট্রোকের আইডির মধ্যে গিয়ে প্রোফাইল সেকশনে গিয়ে আপনারা ওয়ালেট অ্যাড্রেসটাকে চেঞ্জ করে নেবেন। যখন চেঞ্জ করবেন তার পরদিন থেকে মিন্টিং পারপাস যে কয়েনগুলো রিওয়ার্ড হিসাবে পাবেন ওটা আপনি পেতে থাকবেন। না হলে পুরাতন অ্যাড্রেসে আপনার রেওয়ার্ড আসতে থাকবে, যেহেতু পুরাতন অ্যাড্রেসের অ্যাক্সেস আপনার কাছে নেই তাহলে ওই কয়েনগুলো আপনি আর অ্যাক্সেস
নিতে পারবেন না। তো ওই তো हो रहा है अभी वही हो रहा है জয়লাল ভাই এখন হুম, ওটাই হচ্ছে ঠিক আছে একদম একদম যখন ওটাই। ওটা খুঁজে পেলাম না নতুন যখন আমি ওখানে পুট করলাম ওই হুম, নতুনটাতে অ্যাকচুয়ালি এটা হয়েছেটা কি যে হুম, পুরানোটা তো নেই নতুনটা যখন পুট করলাম তো তখন জিরো হয়ে গেল হঠাৎ করে তারপরের দিন থেকে আচ্ছা, এখন নটা করে দিচ্ছে হঠাৎ করে 10-12 দিন হুম, পরে দেখছি টোটাল 4,000 आ गया तो मैंने আচ্ছা, 4,000 4,000 आ आ गया गया মানে वो पहले जो 4,000 वो कॉइन था पुरातन एड्रेस है। हाँ हाँ, ना वो आईडी में पुरातन। शो कर रहा है 4,000 तो मैं सोचा हाँ था हाँ, वो तो ठीक है वो पहले जो कॉइन था वो चला गया वो वापस आ गया तो वो विड्रॉल करके मैं देखा है तो वो चेकिंग হুম, में मैं गया जाए उस टाइम में देखा जो वो नहीं हो रहा সেটাই। উইথড্র তো হবে না, কারণ আপনার পুরাতন অ্যাড্রেসের মধ্যে যেটা স্টেকিং হয়ে আছে সেটার অ্যাক্সেস আপনার কাছে নেই, তাই আপনি ওটাকে উইথড্র করতে পারছেন না। আর স্টেকিং এর মধ্যে যে কয়েন গুলো এখন জমা হচ্ছে সেটা এখন কারোর উইথড্রল অপশন নেই। যখন কোম্পানি থেকে আমাদেরকে আনস্টেকিং অপশন দেওয়া হবে, আমরা তখন স্টেকিং এর কয়েন গুলোকে উইথড্র করতে পারি। কিন্তু যখনই আমরা উইথড্র করব, সেই ওয়ালেট অ্যাড্রেস আমাদের প্রপার তার অ্যাক্সেস আমাদের কাছে থাকতে হবে। যদি আমাদের কাছে অ্যাক্সেস না থাকে তাহলে আমরা কোনো কয়েনটাকে আমরা উইথড্র করতে পারবো না। ওটা কি ভবিষ্যতে কোনোদিন কি কোনো কোম্পানি কোনো সিস্টেম নিয়ে আসতে পারে না, এখন করা কোনোভাবে এটা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম। ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, এটাকে আপনাদের বুঝতে হবে। করা সম্ভব নয় এটা কারোর নিয়ন্ত্রণে নেই, কেউ এটাকে হ্যাঁ কন্ট্রোল করতে পারে না। তাই আপনি যখন ওখানে ওয়ালেট অ্যাড্রেস সাবমিট করেছেন, সেই ওয়ালেট অ্যাড্রেসের রিকভারি পাসফ্রেজই আপনার একমাত্র ওটার মূলধনের চাবি। এটা একবার হারিয়ে ফেললে আপনি আর কখনো ওটাকে অ্যাক্সেস নিতে পারবেন না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক 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 अच्छा আর একটা কথা হলো যে হ্যাঁ वो जो হ্যাঁ फोन नंबर जो आईडी में जो फोन হ্যাঁ नंबर হ্যাঁ, रजिस्ट्रेशन किया था ना तो वो तो अभी मोबाइल नंबर। चेंज करना है तो क्या करना है हाँ अभिजीत सर, यहाँ पर नूरुल जी का जो सवाल है, जो हमारा आईडी का नंबर, आईडी के अंदर जो यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन किया था, वो जी मोबाइल नंबर चेंज करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल है अभी? क्या बोल रहे थे? आईडी ऐसे के मेरा अंदर जो आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करने का कोई ऑप्शन है? नहीं, उसके लिए आपको सपोर्ट में मेल करना पड़ेगा आपके रजिस्टर मेल आईडी से। वहां पे आपको डालना पड़ेगा आपका एग्जिस्टिंग मेल आईडी कौन सा है, आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर कौन सा है, बराबर है। और आपको न्यू मोबाइल नंबर जो अपडेट हाँ करना है उसको भी वहां पे ऐड करना पड़ेगा हाँ और आपको सपोर्ट में उसको मेल करना पड़ेगा। বিলকুল। তো নুরুল দা, বুঝতে পেরেছেন, আমাদের কোম্পানির অফিসিয়াল যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেখানে আপনাকে মেল করতে হবে। আপনার পুরাতন ইমেল অ্যাড্রেসে আপনার যে রেজিস্টার্ড ইমেল অ্যাড্রেস সেই ইমেল থেকে আপনাকে মেল করতে হবে, এবং যখন মেল করবেন সেখানে আপনার পুরাতন মোবাইল নাম্বারটা উল্লেখ করবেন। তারপরে আপনার নতুন যে মোবাইল নাম্বারটা রেজিস্টার করতে চান সেই নাম্বারটাও আপনি মেনশন করবেন। তারপর আপনি কোম্পানির সাপোর্ট মেলে গিয়ে আপনারা মেলটাকে ফরওয়ার্ড করবেন। তাহলে আপনার মোবাইল নাম্বারটা অফিসিয়ালি ভাবে আপনাকে আপডেট করে দেওয়া হবে। ओके 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 ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আশা করি আপনার সমস্ত प्रॉब्लम समाधान হয়েছে। আর যদি दोनों भी আপনার रहेगा क्या क्या सर? दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। जब मोबाइल नंबर चेंज करेंगे तो एक ही मोबाइल नंबर रहेगा वहां पर। अच्छा 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 ठीक है, एक आईडी पे एक ही मोबाइल नंबर और एक ठीक ही है ईमेल ओके एड्रेस थैंक होता यू है। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। और किसी का তো कुछ আমাদের सवाल কাছে है? आगे बढ़ते। জয়ন্তী মাইতি, জয়ন্তী মাইতি, আমি আপনাকে আনমিউট করার অপশন দিয়েছি, প্লিজ ওয়েলকাম জয়ন্তী মাইতি। জয়ন্ত মাইতি, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ, জয়ন্ত মাইতি, নিজেকে যদি আপনি ভিডিও অন করেন। জয়ন্ত মাইতি, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप बढ़िया बढ़िया सर, आपको सारे लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पूरी 70 लोगों की टीम बैठी हुई है। 1 मिनट प्लीज थैंक यू हाँ, नहीं क्या है, आप नेशनल जूम पे बैठे हुए हो, हाँ हाँ, आगे ले लीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। যাচ্ছে হ্যাঁ, তো জয়ন্ত মাইতিকে আমরা আরেকবার নিতে পারি। आगे बढ़िए। अभिजीत सर, हम जयंती माइती को और एक बार ले सकते हो क्या, दूसरा को नहीं? नहीं नहीं, उनको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डी माइती जी हैं,
डी माइती एज पर स्पाइडर है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। फिर चलेगा ना? माइती, हाँ प्लीज वेलकम डी माइती। सर गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो गुड बहुत सारे इवनिंग। क्वेश्चन तो यहाँ किया गया है, वहाँ से बहुत सारे आंसर भी मिला है। तो बात यह है, जो गोपाल जी जो बोल रहा था एमयूएसडी लॉन्च नहीं हुआ, तो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत पब्लिक को है। जी जयराल जी उसका आंसर भी दिया है, जी क्योंकि यूएसडीसी से वो मार्ज हुआ है, ब्रिज किया है। जी। लेकिन हम लोगों तो एमयूएसडी से बहुत सारे प्रमोट किया है ना, तो देखिए एमयूएसडी का नाम नाम से कुछ नाम आएगा? में नाम में अभिजीत जादव के नाम में कुछ नहीं रखा है। अभिजीत जादव नहीं नहीं, क्या काम कर रहा है उसमें सब कुछ रखा है। वो बात सही है। तो बराबर एमएसडी है। और देखिए एमएसटी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप लोगों को यदि कनेक्ट नहीं करती और एमएसटी यदि चाहती थी तो एक ईएम यूएसडी का कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको देती थी और बोलती थी ये हमारा स्टेबल कॉइन है। एमएसटी ने ऐसा किया क्या? नहीं नहीं, वो की नहीं किया है। और जो ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल से, हाँ सर, जो स्टेबल कॉइन के प्रोटोकॉल से उसको फॉलो करके ही एमएसटी आगे बढ़ेगा। और कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन अपने स्टेबल कॉइन को जब लाइव करता है शुरुआत में, तो पहले अच्छा, उसको ट्रांजेक्शन्स दिखाने पड़ते हैं। यस, पहले वो सारी चीजें दिखानी पड़ती है जो जरूरी रहती है, और वो हाँ सर, चीजें आज एमएसटी ने लाइव की है। राइट, तो नाम जो है ना, नाम में कुछ हाँ। नहीं दिखा है, तो एमयूएसडी के वर्क नाम क्या से हो नहीं रहा है वो आएगा ना? जरूरी है। तो एमयूएसडी के नाम से नहीं आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं? नहीं, यूएसडीसी ये है, उसको कल जाके यूएसडीसी प्रोटोकॉल के हिसाब से यदि नाम चेंज करने का ऑप्शन देते हैं तो नाम चेंज होगा। अच्छा 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 जैसे अच्छा, कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का काम वैसे होता हाँ हाँ हाँ। है ना? और एक बात सर, वो जो बात हो रहा था ना पुराने वॉलेट का, हाँ हाँ। जो एड्रेस चेंज करने के बाद वो अभी मिल नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। तो ये तो कभी भी नहीं आएगा क्या? क्या सर? इसका वॉलेट चेंज हुआ है, उसका तो पुराना कॉइन तो नहीं शो हो रहा है। देखिए ऐसे जो वॉलेट्स आपने चेंज किए ना, आपके पुराने हाँ, वॉलेट्स के कॉइन आपके पुराने वॉलेट में ही है, और वो पोर्टल में शो हो रहे। जहां पे एड्रेस का ऑप्शन है ना, जहां पे विड्रॉल में आपके पास में एड्रेस का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक कीजिए। वहां पे दो एड्रेस आपको दिखेंगे। फर्स्ट वाले एड्रेस के हाँ ऊपर सर, आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे उसका डिटेल मिल जाएगा। यस, सेकेंड एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो सेकेंड एड्रेस के ऊपर भी आपको आपके कॉइन दिखेंगे। तो हाँ वो भी दोनों सही है एड्रेस से आप आपके कॉइन विड्रॉल कर सकते हो, दोनों वॉलेट को कनेक्ट करके। ना। जिसका 12 फ्रेज जो जो लॉस्ट हो गया, उसका कोई रिकवरी का कोई चांस नहीं है ना? किसका? जिस आदमी का 12 फ्रेज लॉस्ट हो गया वॉलेट का, उसके लिए तो उसको ही ऑप्शन ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके फीजेस उसने ही गवाए हैं ना, तो उसको ही रिकवर करना पड़ेगा। कंपनी कैसे रिकवर करके तो देगी? सर कंपनी के पास में ये थोड़ी तो उसके फीजेस है। सर हो सकता था, ये तो पहले से पता था। तो पहले ऑप्शन देता था तो बहुत अच्छा होता ना, सर वॉलेट देखिए, चेंज का। मैं एक बात बोलूं क्या? एमएसटी इनोवेशन कर रही है, और एमएसटी ने अभी तक किसी भी प्रोग्राम को जब आपके साथ में साझा किया है ना, तब वो हाँ सर, प्राउंटली किया है। लेयर 1 ब्लॉकचेन में किसी भी वैलिडेटर को एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन है क्या? देख लीजिएगा एक बार, कहीं पे भी अवेलेबल अच्छा, नहीं है। राइट, तो आप लोगों को दिया है, ये आपका भला करने के लिए दिया है ना। और वो अच्छा, क्या पोर्टल में एड्रेस चेंज करना है क्या? ब्लॉकचेन को, नहीं नहीं नहीं, ब्लॉकचेन के टेक को उस लेवल पे बनाना है। राइट, तो बना के आपके सामने वो प्रेजेंट किया है। बात को समझिए, आप लोगों के लिए एमएसटी ने इनोवेशन कर दिया है, तो कर आप दिया। लोग उसका बेनिफिट उठाइए। बिल्कुल। ओके सर, ठीक सर। जी और एक बात है सर। जी जी, बोलिए जो बोलिए हम प्लीज। लोग जो हम लोग जो सुन रहे हैं ना मीटिंग में, जो एसटीपीआई के साथ 3% का जो पार्टनरशिप है, वो की हमको कोई दिखाई दे रहा है कोई? बाकायदा कोई एमसीए उपलब्ध है? पोर्टल पे जाइए। एमसीए पोर्टल पे आप कंपनी के रजिस्टर्ड नंबर को डालिए, वहां पे एमओए और एओए में वो सारी बातें हैं। अच्छा,
वहां से आप देख सकते हैं ना? 100%। ओके सर। बिल्कुल सर। ओके তো থ্যাংক ইউ মাইতি জি, ओके। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর সেই সঙ্গে আমাদের কাছে আর একজন গেস্ট রয়েছেন, স্বাগতম মুখার্জি। আমি স্বাগতম মুখার্জিকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, আনমিউট করার অপশন দিলাম। স্বাগতম দা, নিজেকে যদি আনমিউট করতে পারেন প্লিজ। ওয়েলকাম স্বাগতম দা, স্বাগতম। नमस्ते जी। नमस्ते अभिजीत नमस्ते सर सर। जी नमस्ते। नमस्ते मैं नमस्ते, बोलिए स्वागतम सर। मुखर्जी बोलता है बैंडल से, हुगली से, कलकत्ता से। ओके ग्रेट, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते। हमारा ग्रेट আর सीनियर है। স্বাগতম জি, हमारा স্বাগতম জি, আপনার আপনার ভিডিওটা যদি অন করেন স্বাগতম দা। हमार वीडियो जी जी হ্যাঁ जी হ্যাঁ, ভিডিও অপশনটা। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। जी नमस्ते। मेरा मैं रोड से हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तो आप बात करिए। हाँ, হুম तो बोलता है कि हमारा ग्रेट सीनियर है, जी हम पाया है ईश्वर में, जी तो सतो कुमार हाजरा है। जी ग्रेट सीनियर, ऑनेस्ट, 100% ऑनेस्ट सीनियर है। जी इसीलिए हमको श्रद्धा करता है। और दोनों बात हम बोलता है। जी एक बात হচ্ছে हम्म, ये जो हमारा जो कंपनी से हम ज्वाइनिंग करके लिए, रजिस्ट्रेशन करके लिए, हम जो काम करता है, हमारा जो नेटवर्किंग का प्लान है, उसका जो कमीशन है हम्म 5, 10, 15, 20% और क्लब मेंबर अचीवमेंट है। हम्म ये हमारा हम बोलता है कि जो जो अचीवमेंट हम लास्ट रैंक में करता है, हम्म उसीलिए हम लाइफ टाइम में हम्म और भी काम करता नहीं है। हाँ हमारा एज एक तो एज में ठीक ठीक गया है, तो हमारा 36 बच्चों मार्केटिंग में रहता है ये मार्केट में, तो सब कुछ कंपनी आएगा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जी तो जी एक कंपनी आएगा हमारा पास, एक कंपनी को रिक्वेस्ट है, तो आपका कंपनी से सब कुछ ऑनेस्टी में करना, ऑनेस्टी में सब कुछ रखेगा। कारण वर्ल्ड में, वेस्ट बंगाल में जो जो कंपनी आता है जी हमारा पास, जी वो कंपनी को काम करने के लिए हमारा कोई जाएगा नहीं है, हमारा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। ओके तो हम दयाल में पीठ ठीक जाएगा, तब हम सतो कुमार हाजरा जी को बात सुनने के लिए हम यही कंपनी के मतामत दीजिए। तो हम काम कर के लिए एक तो बात बोलता है कि हमको लाइफ टाइम काम करेगा, आपको लाइफ टाइम प्रोजेक्ट आएगा, हमको लाइफ टाइम काम करेगा, हमारा रिटायरमेंट कोई नहीं होगा। सर देखिए, मैं एक बात बोलूं क्या? एमएसटी बोलिए ब्लॉकचेन सर। अगले 19 साल तक आप लोगों के साथ में रहने के लिए आया है। हाँ, किंतु आप तो बोला है ना, जो हमारा जो जो प्रोजेक्ट आएगा, कार्बन प्रोजेक्ट जी आएगा, जी अमुक जी प्रोजेक्ट जी आएगा, हमारा कम्युनिटी को उनको प्रोजेक्ट में लगाने के लिए जो जो काम करता है, तब हमारा इनकम पास हमारा आता है। जी तो हम बराबर। जो लास्ट रैंक अचीव करता है, हम जी कष्ट करके लिए, हम दिल से लिए हम काम करता है। एक कंपनी हमारा माता है, दूसरा कंपनी नहीं है। हमको लास्ट लेजेंडा क्लब अचीवमेंट के लिए हम लाइफ टाइम इनकम चाहेगा। नहीं, देखिए सर, हमकी लाइफ लाइफ टाइम टाइम काम इनकम के करेगा लिए सर। ना, मैं आपको बात हाँ, बताता बोलिए हूँ। सर। एमएसटी ब्लॉकचेन में यदि आप लाइफ टाइम इनकम कमाना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए एक रास्ता आपके पास में है, जो आपके नेटिव कॉइन्स है, जो आपने लाइफ एज ए टाइम मीन रिवॉर्ड। की सर देखिए सर देखिए, सर सर दो सर मिनट दो सर मिनट दो एक तो मिनट बात, सर, दो सर एक मिनट तो बात, बात सुनिए। हाँ हम बोलिए। लाइफ टाइम बोल नहीं है, हमको एक्स्टेब्लिशमेंट, हमको अनलिमिटेड मनी का एक्स्टेब्लिशमेंट हम चाहता है। नहीं, बात नहीं समझा जोयल जी, आप समझ गए बात? मुझे बताएंगे क्या कह रहे हैं सर? আমি বলছি যে শতবাবু, বেলাল স্বাগতম বাবু, দা, আপনি যে বাংলা আমাকে একটু ভালো করে বলেন। আমি বলছি যে আমরা যে কাজটা করছি, এই কাজটাতে হুম একটা প্ল্যানিং দেয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং প্ল্যানিং। সেই হুম প্ল্যানিংটা আমরা অনেক কষ্ট করে, অনেক মানে বিভৎস কষ্ট করে, যারা আমরা এখানে আছি তারা হুম হুম প্রত্যেকেই, যারা লিডারশিপ দিচ্ছে, তারা হুম অনেকেই অনেক কষ্ট করে, অনেক মানে কি বলে হুম পরিশ্রম করে আজকে একটা লেজেন্ডা ক্লাবে যাওয়ার তারা স্বপ্ন দেখছে। তাহলে হুম লেজেন্ডা ক্লাবে গিয়ে আমরা একটা তো এস্টাবলিশমেন্ট চাইবো সেখানে গিয়ে।
আমাদেরকে আবার কাজ অবশ্যই। করতে হবে, কেন আবার কোম্পানির একটার পর একটা প্রজেক্ট আসবে, সেখানে আমাদের কমিউনিটি বিলকে আমরা কাজে লাগাতে পারলে তবে আমরা ইনকাম পাবো, নাহলে আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট কোথায় থাকবে? আমরা কি সারা লাইফ কাজ করবো নাকি? क्वेश्चन। হ্যাঁ, এটাই কোশ্চেন। ओके, तो अभिजीत सर, स्वागतिक जी का जो क्वेश्चन है, जो हम लोग तो अचीवमेंट करने के लिए हम काम रहे हैं, हमारा नोट भी खत्म हो जाए, हमारा रैंक से हमारा जो उम्र भी बढ़ रहा है, हमारा ऑलरेडी उम्र हो गया है 60 प्लस। तो हम लोगों को आगे जाकर अगर काम अगर यहाँ पर नहीं करेंगे तो हमारा तो यहाँ पर कोई भी अर्निंग नहीं होगा। तो हम लोगों को जैसा आदमी का अगर उम्र अगर ज्यादा हो जाएगा, दूसरा अगर कंपनी के अंदर हम लोग एम्प्लॉय के अंदर अगर काम करते हैं तो हमको तो सैलरी वगैरह आता है, पेंशन वगैरह आता है, तो ये पीएफ सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो हम लोग का उस टाइम क्या हमारा पॉसिबिलिटी क्या देखिए, रहेगा, हम मैं लोगों को वही क्या मिलेगा? वही चीजें सर को समझा रहा था कि এটা यहाँ पे বলুন কি আমরা আগের जी ইনকামটা পাবো প্লাস আমরা जी ওটা जी जी এক্সট্রা ইনকাম जी পাবো, जी সেটা जी বলো। मैं ओके, समझ गया सर आपकी फीलिंग्स। देखिए, मेन चीज जोएल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये कोई एमएलएम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉन्जी स्कीम नहीं है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल रेवेन्यू दिया जाए। दूसरी बात, आपने जो नोड बाय किए हैं उसके कॉइन्स आपको अगले 19 साल तक रिवॉर्ड में आ रहे हैं। ये बिल्कुल लाइफ टाइम इनकम वाला चीज है। 19 साल आपको इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन एज ए रिवॉर्ड में आ रहे हैं। दूसरी बात, बिल्कुल आपके कॉइन्स यदि आप यहाँ पे पीओएस करते हो यानी प्रूफ ऑफ स्टेक करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ट्रांजेक्शन बिल्कुल फीस, गैस फीस का जो आज के डेट में बीएनबी के वैलिडेटर कमा रहे हैं, तो ये बिल्कुल लाइफ बिल्कुल टाइम इनकम ये हो गया ना। अभी एज ए लीडर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपकी कम्युनिटी को बना रहे हो, तो उसी कम्युनिटी को यहाँ पे इस इकोसिस्टम में जो जो प्रोग्राम्स लाइव होंगे, जो ऑफिशियली आएंगे, जो हमारे मैनेजमेंट टीम डिक्लेयर करेगी हमारे ऑफिशियल सोशल चैनल्स के ऊपर, वहां पे उनको उनकी कम्युनिटी यूटिलाइज करने का और रास्ता है। और वहां पे जो एफिलिएट सिस्टम बनेंगे, उस एफिलिएट सिस्टम में वो पैसा बना सकते हैं उनकी कम्युनिटी को कनेक्ट करके, है ना। तो ये बातें हैं। बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेते हाँ हैं। हाँ हाँ, मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग को हम लोग विराम की तरफ लेके जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब्दुल तो रहीम सर, अब्दुल रहीम मलिक सर, हाँ आपको अनम्यूट का मौका है। हाँ हाँ हाँ, हम उनको अब अनम्यूट कर दिया हूँ। अब्दुल रहीम, प्लीज वेलकम। হ্যালো স্যার, গুড ইভিনিং। পসিবল नमस्ते। পসিবল থাকলে ভিডিওটা অন করবেন। আব্দুল রহিম জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইকো হতে পারে, आपका डबल आवाज আসছে आपका আপনার। इको हो रहा है। वीडियो बंद कर देता हूँ सर। लाउड स्पीकर, हाँ लाउड स्पीकर तो ऑफ कर। आपको अनम्यूट का मौका दिया है, फिर से बोलिए। आवाज आ रहा है सर? जी सर मेरा बात था सर, एक मतलब एक नूरुल जी एक बात किया था, तो मेरा एक फोन है, मतलब मेरा फ्रेंड का है, मतलब फोन खो गया, जी तो उसमें मतलब 4-5 हजार मतलब कॉइन था, तो वो कुछ हो सकता है कुछ? नहीं सर, जब तक पेजेस रिकवर नहीं होंगे वो कॉइन्स रिकवर करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब कुछ भी हो नहीं सकता है मतलब? नहीं, जब तक आप उस सर आई थिंक किसी का तो और माइक ऑन नहीं है। 3100 बोलिए सर। कॉइन मैं म्यूट करता हूँ एक बार आपको और मैं आंसर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सर क्या है कि आपने यदि आपके फ्रेंड का मोबाइल गुम गया है और उसके फेजेस यदि गुम गए हैं, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो अपने एड्रेसेस को पोर्टल में चेंज करने के लिए सपोर्ट में मेल करें या डायरेक्टली पोर्टल में एड्रेसेस को चेंज करें। जिस वजह से जिस दिन से वो एड्रेस चेंज करेंगे उस दिन के बाद में जितने भी उनके कॉइन्स वैलिडेशन है वो नए एड्रेस के ऊपर आएंगे, और पुराना जो वॉलेट एड्रेस है जब तक उसके फेजेस रिकवर नहीं होते तब तक उस कॉइन्स को आप विड्रॉल नहीं कर सकते या उस कॉइन्स को आप
रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वो हो नहीं सकता। जब तक आपके फेजेस या कीज आपके पास में नहीं है तब तक वो रिकवर नहीं हो सकते। जी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। ओके ओके, समझ में सर आया, लेकिन उसका मतलब फोन मतलब पूरा चोरी हो गया मतलब। नहीं, तो उसके लिए उनको एक ऑप्शन है कि वो अपने नए वॉलेट को क्रिएट करे नए मोबाइल में, और अपने पोर्टल में वो एड्रेस चेंज करे, जिस वजह से नए वैलिडेशन से जो कॉइन आएंगे वो उनको मिल जाएंगे नए एड्रेस के ऊपर। ओके, कॉइन शो हो रहा है सर, हाँ लेकिन पूरा कॉइन शो हो रहा है, लेकिन बाद में जब विड्रॉल करने का दिखा रहा है स्टीम, वहाँ पे कॉइन नहीं आ रहा है। जो मतलब नया वॉलेट जो था वहाँ पे जितना कॉइन है वही आ रहा है। बराबर है ना। पुराने वॉलेट का जब तक आपके पास में पेजेस नहीं रहेंगे ना, तब तक आपको कॉइन का रिटर्न नहीं होगा। जब तक आपके पास में पुराने वॉलेट का फेजेस कीज नहीं रहेगा तब तक आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ओके एमएसटी ओके लेयर 1 ब्लॉकचेन अपने कोई भी प्रोग्राम को, अपने कोई भी प्लेटफॉर्म को, अपने कोई भी इकोसिस्टम्स को अपनी ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर ही लाइव करेगा, और अपनी अनाउंसमेंट डालेगा ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास में इस ब्लॉकचेन के थ्रू डेवलप किए गए कोई प्लेटफॉर्म्स आते हैं, कोई एप्लीकेशंस आते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कोई इकोसिस्टम्स आते हैं जो ऑफिशियल चैनल पे अनाउंस नहीं हुए हैं, तो उस प्लेटफॉर्म्स को आप आपके लेवल पे नॉलेज में ले, आपके लेवल पे उस सारी चीजों को आप सोचे समझे जानकारी ले, और वहां पे यदि आप कोई फंड रेज कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी और उस प्लेटफॉर्म की रहेगी। क्योंकि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और लेयर 1 ब्लॉकचेन में हर कोई अपना एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम्स, डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी तरीके से आप जानकारी लीजिएगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट्स की पूरी जानकारी लेने के बाद में यदि आप वहां पे फंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस फंड्स की जिम्मेदारी आपकी और उस प्लेटफॉर्म की है। क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन अपने कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी इकोसिस्टम्स को यदि लाइव करता है तो वो लाइव करेगा, तो वो ऑफिशियल चैनल्स पे विथ फाउंडर्स, विथ पोस्ट अनाउंस जरूर करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स और हमारी सारी चीजों के साथ में जो ऑफिशियल है एमएसटी ब्लॉकचेन की, उसके साथ में कनेक्ट करें। तो प्लीज लिंक करके एक मैसेज आया है, सर को एक बार लिंक जरूर दीजिएगा ऑफिशियल चैनल्स की। शेख रिजा बोलोली जी, आपके पास में उसके लिंक्स रहेंगे, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में आप उस लिंक्स को डाल सकते हैं जो ऑफिशियल चैनल्स है हमारे। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आपने यहाँ पे सारी चीजें समझी, जानी, आप आगे बढ़ेंगे और एमएसटी का ऑफिशियल नॉलेज लेंगे जो आप लोगों के लिए, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हुए और इस ब्लॉकचेन की हर एक चीजों का नॉलेज आपने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जोएल जी। थैंक यू सो मच सर। चाहूंगा कि आप सभी लोग मिलके अप्रैल के 5 तारीख को एक इवेंट का प्लानिंग करें, जहां पे हम लोग बाकायदा ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम ले, जिस अवेयरनेस प्रोग्राम में इस ब्लॉकचेन का पूरा टेक, इसकी सारी चीजें आप लोगों को नॉलेज दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের সকল সদস্যবৃন্দ, লিডার সকলকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অভিনন্দন জানিয়ে, শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের জুম সেশন আমরা আজকের এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি, এবং আগামীকাল একটি নতুন টপিক নিয়ে আমরা আবার পুনরায় আমাদের জুম সেশন শুরু করতে চলেছি। তো আপনারা প্রত্যেকে আসবেন এবং আপনাদের প্রত্যেক কমিউনিটি মেম্বারদেরকে আমাদের এই এমএসটি বেঙ্গল টিমের জুম সেশনে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করবেন, কারণ আমরা সবাই মিলে এই এমএসটি ব্লকচেনে আমরা পরিবারের সকলে মিলেমিশে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই এমএসটি ব্লকচেনকে ইতিহাসের বুকে আমরা যেন নাম্বার
টপ 10 এর মধ্যে আমরা একটা এমএসটি ব্লক চেন অতএব নাম্বার 1 এমএসটি ব্লক চেন যেন বানাতে পারি, সেই জন্য আমাদেরকে প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলেমিশে আমাদের সকলকে এই এমএসটি ব্লক চেনের প্রচারের ইনোগ্রেশন বাড়াতে হবে। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভরাত্রি, জয় হিন্দ, জয় এমএসটি বলে আমাদের আজকে এমএসটি বেঙ্গল টিমের জুম সেশন আমরা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। নমস্কার।